أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستضا کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آج پتہ نہیں پاکستان کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے نا، انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، سارا ووٹنگ ہے نا۔ چلے کوئی نہیں، آئیں گے تو ٹھیک ہے، جو ریکارڈنگ سنی، اور وہاں سے ہیں بھی میرے خیال میں کم اسٹوڈنٹ، زیادہ جو ہے انڈیا سے اور آپ لوگ باہر سے ہیں۔ اچھا یہ تو ہے آئی ہوئی ہے نا افشین۔ افشین کیا حال ہے آپ کے لاڑکانہ میں؟ الحمدللہ میم، سگنل کافی نان جا رہے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ پہلے پڑھ لیجیے گا، صحیح ہے، میں آپ شیئر کرتی ہوں۔ پھر مجھے بھی تھوڑا فلو ہوا تھا تو میں نے کہا اب بولا ہوا ہے تو میں چلی جاتی ہوں، تو ہم اس کو انشاءاللہ کرتے ہیں کنٹینیو۔ تو آج ہم نے ایکسرسائز 10 سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے افشین آپ آ جائیں پڑھ لیں تھوڑا۔ میم آئیے ایکسرسائز 10 ہاں 10 سے، ایکسرسائز 10 ہاں 10 سے۔ ایکسرسائز 10 اقرل مثالین ہم، ثم بتا بین کل من الجملتین مستعملا ان وعلم ان من اخوات ان۔ اچھا تھوڑی سی نا اب آپ کی روانی آنی چاہیے، ٹھیک ہے، قرآن مجید بھی زیادہ پڑھا کریں اور یہ عربی بھی زیادہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ روانی آئے نا۔ تو اقرا المثالین ثم اربط، ٹھیک ہے، اس کو ملا کے پڑھیں گے، ثم اربط بین کل من الجملتین مستعملا ان وعلم، یہ وعلم ہے، وعلم نہیں ہے، وعلم ان من اخواتہن، تو یہ کہہ رہے ہیں وعلم اور جان لو کہ انا جو ہے وہ من اخواتی انا ہے۔ دو دفعہ انہوں نے لکھ دیا، آپ نے دو دفعہ کیوں لکھا؟ اچھا یہ اس کے لیے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایمفیسائز کرنے کے لیے لکھا ہے، اور یہ والے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اخوات انا میں سے ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، اخوات انا اسی کو کہتے ہیں نا، جی حروف میم، مشبہ بالفعل میں سے۔ تو کس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج؟ انا کے بارے میں، انا کے بارے میں یا اس کی سسٹر کے بارے میں؟ اس کی سسٹرز کے بارے میں، جو کون کہ سی ہے نا، یہ کون سی 6 ہوتی ہے نا میم، ہاں 6 انا کے بارے میں، تو 6 کے انا بارے میں تو نہیں پڑھنے جا رہے ہیں نا، ایک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کون سی سسٹر کے بارے میں، انا کی کون سی سسٹر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں آج؟ انا انا تو خود ہے نا بڑی بہن، تو انا، سوری میم، انا یعنی یہ انا کے سیکنڈ بارے میں، نمبر ہاں انا جی، کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو انا اور انا کا میننگ سیم ہوتا ہے، لیکن ڈفرینس کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ وہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ انا بیچ میں آتا ہے، انا شروع میں آتا ہے۔ انا جو ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، انا کس پہ داخل ہوتا ہے؟ یہ میم سارے وہ کے بھی ساری جملہ سسٹر جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوتی ہیں، جتنی بھی ہیں۔ یہ نہیں جی کہ بڑی بہن تو جملہ اسمیہ پہ آ رہی ہے اور چھوٹی والی جملہ فعلیہ پہ آ رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ جو کام بڑی جی بہنیں کر رہی ہیں وہی چھوٹی بہنیں کر رہی ہیں۔ تو اگر انا جملہ اسمیہ پہ آ رہی ہے اور ان مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا رہی ہے، تو چھوٹی بہنیں بھی وہی کام کریں گی، چاہے وہ انا ہو، چاہے وہ لکنہ ہو، چاہے لا اللہ ہو، اور بھی جتنی ہیں وہ سب یہی کام کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج جی ہم میم، انا کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں زبر کے جی ساتھ۔ جی میم، انا زیر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی جملہ اسمیہ پہ ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ پہ۔ انا کا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ درمیان میں آتا ہے، جو درمیان میں آتا ہے نا وہ اپنے جملہ اسمیہ کو جملہ نہیں رہنے دیتا، کیا کرتا ہے وہ جملہ اسمیہ کو ون ورڈ میں چینج کر دیتا ہے، پورے جملے کو ون ورڈ بنا دیتا ہے جو درمیان میں آتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اگر میں آپ کو نام بھی بتاؤں تو بھی چلے گا، لیکن جب بتانا ہی ہے تو یہیں پہ بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ جائیں اس کو۔
اور یہاں پہ جو انا ہے وہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے. مثلا یہ والا جملہ ہے آپ کا، اس پہ آپ انا داخل کریں گے تو کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ ہوا انا، مریض جو نمبر 1 ہے، ہاں اس پہ انا داخل کرو، کیا ہوگا؟ تو انہو مریض. انہو مریدن ہو جائے گا نا، یہ ضمیر اس میں چینج ہو جائے گی، انہو مریدن ہو جائے گا. لیکن جب اس پر ہم انا داخل کریں گے اسی جملے پہ تو پھر کیا ہوگا؟ تب بھی یہی ہوگا، انہو مریدن ہی ہوگا، ہے نا؟ ہوگا تو وہی، انا نے بھی وہی کام کرنا ہے، اس کو منسوب کر دینا ہے نا، تو انہو ہو جائے گا، انہو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جی جب انا داخل کریں گے تو وہ انہو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انہو جب ہو جائے گا تو فرق کیا پڑے گا؟ ایک تو انا درمیان میں آئے گا، دیکھیں انا کہاں پہ آ رہا ہے؟ درمیان میں آ رہا ہے. جی میں ٹھیک ہے، اس نے بھی ہوا کو ہو کر دیا، منسوب کیا، مریدون کو مریدون ہی رہنے دیا ہے. لیکن یہ جو پورا ہے نا انا، اور یہ پورا ون ورڈ میں چینج ہو جائے گا، یہ ون ورڈ ہو جائے گا. انا نے کیا کرنا ہے؟ اس پورے جملے کو ون ورڈ کر دینا ہے، اپنے اسم کو اور خبر کو بھی سب کو پکڑ کے ون ورڈ بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انا کام کرتا ہے، انا نہیں کرتا. انا اس کو کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے تم جملہ ہی رہو. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی میم جی ہاں، ابھی ہم کریں گے نا تو پھر سمجھ میں آئے گی. تو انا اور انا میں یہ فرق ہے، انا درمیان میں ہے، وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دے گا، اس کو ون ورڈ میں چینج کرے گا. لیکن انا جب آتا ہے تو وہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے. یہ باتیں اپنے دل میں دہرایا کریں دن کو. ٹھیک ہے، جی اچھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جملہ اسمیہ سے یہ جملہ اسمیہ ہے آپ کا، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اس کے اوپر آپ نے دو کام کرنے ہیں. ایک تو اظنو لگانا ہے. اظنو فعل ہے یا اسم ہے؟ میم فیل ہے نا، اس گمان کو کہتے ہیں نا. میں گمان کرتا ہوں، جی میں تو کرتا ہوں تو زمانہ بھی آ گیا، تو یہ فعل ہے نا. جی میم اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ میں میں. اب یہ آپ کا فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا فعل ماضی نہیں ہے. نو میم فعل ماضی تو ایسا نہیں ہوتا نا، فعل اس ماضی میں تو آپ، ابھی آتا ہے. ہاں تو یہ مضارع آ گیا آپ کا، پہلے مضارع پہلا والا آ گیا یہاں پہ. تو ہم ابھی انشاءاللہ فعل مضارع بھی شروع کریں گے. تو اظنو یہ یہاں پہ آ گیا. اب اس کے بعد انا آیا، کیونکہ انا درمیان میں آتا ہے، وہ شروع میں نہیں آتا. جی میم اظنو انا. اب یہ جو ہوا تھا نا، اس کو انا نے کیا کر دیا؟ ہو کر دیا، اپنا اسم بنا لیا اور اس کو منسوب کر دیا، اور خبر کو کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، جی خبر کو مرفوع ہی رہنے دیا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ایکسرسائز ایسے ہی کرا دوں. ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا بھائی یہ اظنو ہے، یہ فعل ہے، اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہے. جب بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ حمزہ آ رہا ہے شروع میں، تو اس کا مطلب جی ہوتا ہے انا ضمیر، اندر انا ضمیر فاعل بن رہی. ٹھیک ہے، اب اس کا یہ فاعل ہے، جب بھی فعل دیکھیں اس کا فاعل ڈھونڈیں. اب کیا ہوگا کہ یہ پورا جملہ تو ون ورڈ بن گیا نا، تو یہ جی فعل ہے، یہ فاعل ہے، تو یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ فعل فاعل کے بعد کیا آتا ہے؟ مفعول. مفعول. تو یہ پورا جملہ ون ورڈ بن کے آپ کا مفعول بن جائے گا. کوئی مشکل بات نہیں ہے. اظنو فعل ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہے انا، اور آگے والا جملہ جو ہے وہ ون ورڈ بن کے وہ اس کا مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، جی میم تو منیمم آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر اظنن داخل کرنا ہے اور انا داخل کرنا ہے، اور اس کو ہو میں چینج کرنا ہے، اور باقی ایسے ہی لکھ دینا ہے. اگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ابھی، تو آپ نے صرف چینجنگ تو کرنی ہے نا، اظنن بھی لانا ہے اور انا بھی لانا ہے، اور انا کی جو ضمیر آئے گی اس کو منسوب بھی کرنا ہے. اگر کوئی اسم آئے گا تو اس کو بھی منسوب کرنا ہے. جیسے یہاں پہ المدرس ہے نا، جی المدرسوں پہ آپ کیا کریں گے؟ اظنو کو داخل کریں گے اور انا داخل کریں گے یہاں پہ، اور المدرسہ ہو جائے گا انا کی وجہ سے. اور ما جا کیا بن جائے گا؟ وہ آگے بن جائے گا، اس کو ایسے ہی لگا دینا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. اظنو نے آپ کے لیے لگا دیا ہے.
آپ نے اظنو کے بعد کیا لگانا ہے؟ انا لگانا ہے. تو کیوں انا جی لگا رہے ہیں؟ کچھ اور کیوں نہیں لگا رہے؟ کیونکہ اظنو کے بعد آتا ہی انا ہے. جی میم. اظنو کے بعد آتا ہی انا ہے. اب جب انا لگایا تو یہ انتا کیا ہو جائے گا؟ انتا کیا بن جائے گا؟ ادھر انتا ہی انکا ہاں انا کا بن جائے گا. انکا ہو جائے. انا کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایکسرسائز آپ نے کی ہوئی ہیں انا کا اور انا کا والی. ٹھیک ہے، تو یہ انا کا ہو جائے گا اور طبیبن کو آپ نے ایسے ہی لکھ دینا. ٹھیک ہے، طبیبن کو ایسے ہی لکھ دینا، اس سے کچھ نہیں کرنا، صرف بس اس کو منسوب کرنا. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظنو انا. میم شو نہیں ہو رہا. آپ کا نیٹ ویک ہو رہا ہے شاید. ری لاگ ہو کے دیکھو. نمبر 3 میم. نمبر کون 2 سا کی. پڑھوں؟ نمبر 2. 2. اچھا پہلے آپ ہوا. نمبر 1 کریں دوبارہ سے اور پھر اسکرین آپ کو ہو رہا ہے شو مگر وہ آ نہیں رہی ایکسرسائز، پتہ نہیں نیچے نہیں ہو رہا. میرے پاس تو سب ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، فکر نہیں کریں. کبھی تھوڑا تھوڑا لوڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا. میرا نیٹ تو 100% ہے. اچھا آئے نمبر 1 کریں. انتا طبیبن اظنو انکا طبیبن. طبیبن. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم کیا ہو؟ ایک ڈاکٹر ہو. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اب جی میم. اظنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی گیس، آئی تھنک، ہے نا؟ آئی تھنک. اب انا لگانا ہے اور انا کے آگے کا لگا دینا ہے، کیونکہ وہاں پہ انتا ہے تو اس کے اپوزٹ ضمیر لیفٹ ہینڈ والی ضمیر لگانی ہے. ٹھیک ہے، انا کا ہو جائے گا اور آگے کیا ہو جائے گا؟ طبیبن. اس کو ایسے ہی لکھ دینا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ایسے ہی رہتا ہے. تو اس کا میننگ کیا ہو جائے گا ابھی؟ آئی تھنک یو آر اے انڈیڈ. ڈاکٹر. انڈیڈ یو آر اے ڈاکٹر. انا کا مطلب کیا ہے؟ انا کا مطلب انڈیڈ ہوتا ہے نا. جی جی. اور اگر نہیں بھی اس کا ترجمہ کرتے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ آئی تھنک یو آر اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے، اب جی نیچے میم. والا کریں. ہوا من الیابانی ہم، اظنو انہو ہم. من الیابانی. انا ہو ہو جائے گا. اظنو کے بعد انا آئے گا، انا ہو جائے گا. اس من یہ الیابانی. رائٹ ہینڈ والی ضمیر ہے، آپ نے لیفٹ اس کی جگہ لیفٹ ہینڈ والی لگانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی میم. تو وہ ہو جی. ہوتی ہے. تو انا ہو من من الیابانی. الیابانی. اس کو ایسے ہی لکھ دینا، اس میں کچھ نہیں کرنا. تو اب اس جی. کا ترجمہ کریں، پہلے اس کا ترجمہ کریں اور پھر اس کا کریں. وہ جاپان سے ہے. ہم، میں نے گمان کیا، میں نے سوچا کہ وہ جاپان سے ہے. میرا گمان ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں نا. ٹھیک ہے، جی میرا میرا گمان گمان ہے کہ آپ جاپان سے ہیں. ٹھیک ہے، جاپان سے ہے. جی. میرا گمان ہے کہ آپ جاپان سے. جیسے آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں نا کہ وہ کہاں کا ہے، تو آپ اسی طرح بات کرتے ہیں نا کہ مجھے جی لگتا ہے، مجھے لگتا آئی ہے. گیس، آئی تھنک یو آر فرام جاپان. اچھا آگے کیا؟ یہ مریدتن. یا مریدتن، یہ ایک مریضہ ہے. ہم، اظنو ہم، انہا ہم. یا انہا مریدتن. مریدتن کو نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے، صرف وہ اس کو ہاں میں چینج کر دینا. ہم کو جی میم. کیسے کریں گی؟ ہم تو ہم ہی ہوتا ہے میم. ہاں دونوں طرف ہوم ہی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوم ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ میں بھی لیفٹ میں بھی ہوم ہی ہوتا ہے. جی میم. ٹھیک ہے، تو اب کیسے کریں گے؟ اظنو. ثم طلاب اظن انہم طلاب. یاد رکھیں یہ انا نہیں ہے، یہ انا ہے، یہ درمیان میں آ رہا ہے اور یہ ہوم ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اس جی کو میم. ہوم کرنا ہے. انا ہوم. آگے کیا ہے؟ طلاب. طلاب. کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں. میرا میں نے گمان ہے کہ وہ سب کیا ہیں؟ سب اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹس ہیں. جی میم. وہ. ٹھیک ہے نا؟
اور یہاں جی پہ ہا تھا تو وہ لڑکی، یہاں پہ ہے تو وہ مرد، ٹھیک ہے، مذکر، اور یہاں پہ ہے تو تم، ٹھیک ہے. تو ترجمہ صحیح کرنا ہے ضمیروں کا، ہر ضمیر کا الگ ترجمہ ہوتا ہے. اچھا نیکسٹ آ جائیں، کون کرے گا؟ آپ آئیں تھوڑا سا کریں. استاذہ شو نہیں ہو رہا. السلام علیکم. وعلیکم استاذہ میں کر السلام. لوں کیا؟ ہاں جی آپ کر لیں، جلدی ہے. میرا جی اسکرین کیوں ہو ہاں رہا استاذہ. ہے؟ آپ کا اسکرین اسٹرک ہوا ہوا ہے، آپ ادھر ری نو لاک میں کر. نے اس کو میں نے ری لوڈ کیا ہے میں نے، پھر اب تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. نہیں کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سیل فون پہ ہیں یا لیپ ٹاپ پہ ہیں؟ لیپ ٹاپ پہ ہوں میں لیپ ٹاپ سے ہی دیکھتی ہوں. میں آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تھوڑا اسکرول کریں، اوپر نیچے آ جائے گا. میں دوبارہ ری آپ بوٹ کا کر. نیٹ نہیں شاید اس ایکچولی نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے استاذہ. میں نے مجھے بھی نہیں آ رہا ہے. میرے پاس کتاب ہے نا تو میں اس سے کر اوکے پا رہی ہوں. ہاں میرے خیال میں نے شیئر ہی نہیں کیا آپ لوگوں سے. ایسا کیسا جی ہو گیا؟ میں ہمارا بھی نہیں ہے۔ اسکرین ہی شیئر نہیں کیا. ریکارڈنگ آن ہے؟ یہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، وہ تو جی میں جی نہیں جی بولتی، جی جی. لیکن میں نے اسکرین تو شیئر کیا تھا آپ لوگوں سے، بک تو شیئر کی تھی. میم شیئر کیا ہے نہیں لیکن وہ لیکن اسی پہ اسکرول نہیں ہو رہا ہے پھر واپس. اچھا ابھی ہو رہا ہے؟ نہیں ابھی بھی نہیں ہو ابھی بھی رہا؟ نہیں. اسکرول بھی نہیں، نظر بھی نہیں کچھ آ رہا مجھے. نہیں اچھا نظر تو آ رہا اچھا ہے، ایک اسکرول سیکنڈ، نہیں ہو رہا ہے. ریزیوم میں نے شیئر ری بوٹ کیا ہے تو اب آ گیا. ہاں ابھی آ ہو گیا رہا آ ہے، گیا ابھی ہاں آ آ گیا. گیا. ہاں ابھی آ جزاک گیا اللہ. نا. یہ ریزیوم شکر. شیئر ادھر پاز ہو گیا تھا کسی وجہ سے نا، میرے کو اس سے پاز ہو گیا تھا. او مائی گاڈ. چلیں وہی تو کہہ رہی ہوں اب میں، کریں. ایسا کبھی ہوا نہیں. ہاں مجھے اتنا نہیں ان چیزوں کا پتا، ابھی میں نے دیکھا تو وہ پاز کا بھی لکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو آن کیا ابھی. چلیں انتا پڑھے، کون پڑھ رہے ہیں؟ شاہین آپ آج ہے. مجھے کہہ رہی تھی. اوکے. اس سے اگر ان کو آ رہا ہے تو ان کو پڑھنے دیں، میں ہاں نیکسٹ تھوڑا ایکسرسائز سا کر آپ لوں کر گی. لیں، تھوڑا آگے ایزی آئے گا تو میں ان کو دے دوں گی، آپ کر لیں. یہ بھی جی ایزی ہے. جی جی. ہاں. سب کا خیال رکھنا. 5 انتی جوآ ہوں. اظن انکی جوآ. انا کی صحیح ہے استاذہ؟ جوا، باقی تو ویسے ہی رکھنا ہے جی جوا. اس کا جی میننگ جی کیا ہوگا جی. شاہین؟ آپ بھوکی ہو. ہوں. اظن مجھے لگتا ہے آپ بھوکی ہو. آپ بھوکی ہو تو انا کا ہو جائے گا. انا لگائے بغیر انکی آپ نہیں کچھ کر سکتے، اور انا کیا انکی ہو کرتا جائے ہے؟ گا نا. انا اپنے جی اسم کو منسوب کرتا ہے، انا بھی کرتا ہے، تو اس جی کو آپ نے کا کر دیا. اور جو کیا ہے؟ یہ مونس ہے. ہاں اس کے لیے انکی آیا نا استاذہ. ہاں کی آئے گا، ٹھیک ہے صحیح ہے. جی 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 جی. جو صحیح ہے. اب ہاں. اگلا کیا ہے؟ نمبر 6. المکتبۃ مفتوحۃ. اظن اظن انہ المکتبۃ مفتوحۃ. اب ہو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اظن یہاں نہیں اظن یہ جو پڑھا میں نے اظن پڑھا. ہاں آگے کیا ہے؟ اظن المکتبۃ صرف مفتوحۃ. انا نہیں لگائیں گے؟ ان لگا کے استاذہ. ہاں تو ابھی ان وہ المکتبۃ ان المکتبۃ ہم، مفتوحۃ. پہلے جی جو آپ نے بولا تھا نا شروع میں، اس میں آپ نے جی جی یہاں پہ جی ہو بھی جی لگا دیا تھا. جی جی استاذہ. صحیح صحیح ہاں صحیح ہے استاذہ. تو وہ میں کر رہی تھی کہ اب نہیں لگانا، ٹھیک ہے. مکتبتا، جی جی. یہ آپ کا دمہ کس میں مفتوحۃ. چینج ہو جائے گا؟ زبر میں چینج ہو جائے گا، کیونکہ یہ انا کا جی اسم ہے نا. جی جی استاذ. جی ان استاذہ. المکتبتا مفتوحۃ، ٹھیک ہے. جی جی اچھا جی. القہوۃ لگ باردۃ. ہاں. القہوۃ باردۃ. اظن انہ القہوۃ باردۃ. ان القہوۃ، جب اسم ہوگا تو اسم کو زبر دے دیں، اگر ضمیر ہوگی تو اس کی جی جگہ استاذہ. لیفٹ ہینڈ والی ضمیر لے آئیں گے، ٹھیک ہے. جی اب یہاں استاذہ. پر جی کیسے استاذ. آئے جی گا؟ استاذ. القہوۃ نا استاذہ. ہاں یہ والا انہ کر، القہوۃ. یہ کر یہ لیا کون نا سا آپ نے؟ استاذہ؟ یہ کیا نہیں ہے جی باردۃ؟ یہ کیا ہے نا. جی جی. اگلا ہاں کرے آپ. 8واں کر لو. ہم، ہاں. محمد ہم، محمد ذهب الى المکتب. ہم، اظن ان محمدا ہم، ذهب الى المکۃ. ہم۔ آ تو جائے گا. یہ پورا ایسے ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں کوئی جی چینج جی نہیں استاذ. لانا، چاہے وہ ون ورڈ ہو جی چاہے استاذ. پورا کمپلیٹ جملہ ہے. یہ فعل ہے اور اس کے جی اندر ہی فاعل ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس کا متعلق ہے.
جار جی مجرور ہے نا استاذہ، الا مکہ تھا، جی 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 اچھا جی. اس کو ہم محمدن کو کیسے لکھیں گے الف بتائیں لگا کے دو فتحتین لگا دیں گے. دو فتحتین نہیں یا تو فتحتین بولیں یا دو جیسا زبر بولیں فتحتین، جی 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 جی، دو زبر لگا اب دیں میں گے. اس جی لیے آپ کو کریکشن کرتی ہوں کہ پھر آپ کو صحیح آ جائے نا نالج صحیح جی آ جائے استاذہ، صحیح تو صحیح یہ آپ صحیح، نے الف جزاک لگانا اللہ ہے خیر. ٹھیک ہے اچھا جی ابھی آپ آ جائیں آپ دا کریں دونوں سینٹینس جی، جزاک اللہ خیر استاذہ. کچھ کوئی مجھے کام رہا ہے، اس کے لیے بات میں نے نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات میں سن رہی ہوں. آپ سنتی رہیے عابدہ تشریف لے آئے السلام علیکم. وعلیکم السلام کریں نمبر 9 فاطمہ تو فل مکتبتی. میننگ کریں اس کا فاطمہ لائبریری میں ہے. اس میں فاطمہ کیا بن رہا ہے اور یہ کیا بن رہا ہے فاطمہ تو اس مبتدا، ہم، فل مکتبی اس متعلق خبر. متعلق خبر خبر تو ہے ہی نہیں تو شبلہ پھر جملے نہیں ہے فی المکتبی، خبر نہیں ہاں ہے اس کی. جب خبر نہیں ہوتی تو یہ خود مقام خبر بن جاتا ہے خود خبر بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ خبر بنا دینا ہم، اچھا ابھی آپ کیا کریں گی کہ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کون سا جملہ بن رہا ہے فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے اسمیہ سے شروع ہو رہا ہے. اسمیہ ہاں اور اس سے اوپر والا ذهب الى مکہ تھا یہ کون سا جملہ ہے فعلیہ، جملہ فعلیہ، ذہابہ سے شروع ہو رہا ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے. ہاں اتنا جملہ تو فعلیہ ہے لیکن یہ پورا جملہ کیا ہے یہاں سے لے کے جملہ یہاں فعل، تک ہاں یہ تو جملہ پورا جملہ فعلی اسمیہ ہے. اسمیہ کیونکہ وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے یہ مبتدا یہ جی، خبر ہے ٹھیک خبر ہے ہے. جی. اچھا اب یہ فعل ہے یا اسم ہے اظن ظنو فعل ہے. فعل ہے جیسے ذهب فعل ہے نا ذهب تو ماضی ہے نا جی اظن فعل مضارع ہے ٹھیک ہے مدار. جی جب شروع میں یا تا الف نون آ جائے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے جی. الف آ رہا ہے نا حمزہ آ رہا ہے نا ہوں. میں نے بتایا نا یا تا الف نون آ جائے تو وہ کیا ہوتے ہیں فعل مضارع ہوتا ہے جی. یظن ہو یا اظن ہو یا نظن ہو یا تظن ہو یہ چار لیٹر آ جائیں شروع میں ادھر ہاں فعل سے پہلے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے جیسے یومنون ہوتا ہے بالکل ایسے بن اچھا. جاتے ہیں جیسے بالکل انجان اچھا یہ فعل مضارع ہے اب اس میں آپ کیا کریں گے آگے کیسے بنائیں گے اس کو اس کو کہنا اظنو انا انا ہا فی المکتبتی. ہاں کیوں لگائیں گی فاطمہ کی جگہ ہاں کیوں فاطمہ کی لا رہی جگہ ہیں فاطمہ کو ہی لائے نا اچھا فاطمہ کو ہی لانا. اچھا ایسا بھی ضمیر لگانا ہے اس کی. انا ضمیر آئے گی فاطمہ. تو ضمیر لگائیں گی ٹھیک ہے ضمیر آئے گی اچھا تو اچھا. ضمیر لگائیں گی جہاں پہ نون آ رہے آپ نے دیکھا نہیں ہم نون ہی لگا رہے تھے فاطمہ کا ہم نے کہا تھا فاطمہ. محمد دن یہ نہیں لگایا یہ دیکھیں جی جی محمد جی دن جی لگایا نا تو صحیح ہے ضمیر صحیح. تو نہیں لگائی تھی نا اب اس میں بتائیں مجھے انا فاطمہ انا فاطمہ تا تا فی المکتبتی. اب یہ غیر فی منصرف ہے تو اس کے اوپر کیا ہوگا ایک ہی زبر آئے گی دو زبر نہیں ایک آئیں آئے گے گا. جی یہ جی منصرف تھا جس پہ تنوین آتی ہے وہ منصرف ہوتا ہے تو جی. وہ محمد دن محمد دن محمد دن ہے نا اور یہ کیا ہے فاطمہ تا اور فاطمہ تا فاطمہ تا فاطمہ تو. فاطمہ تو بس. فاطمہ جی تا فاطمہ تا جی تو اب اس میں جی. کیا کرنا ہے آگے انا فاطمہ تا فی المکتبتی. فی المکتب جب اس کا ترجمہ کرے اظن انا فاطمہ تا فی المکتبت ظنو کے بارے کیا ظنو کیا مطلب تھا بول گئی ظنو. اتنی بے جلدی شک ابھی تو ہم ادھر ہی ہیں ہاں، چلو ہاں بے شک کیا گندا ہوا اس کا. نہیں نہیں ہم، مجھے لگتا ظن- ہے آپ کو تو مجھے انگلش بھی آتی ہے آئی گیس مجھے آئی لگتا ہے تھنک کچھ بھی بولے انڈرسٹینڈ ہوگا آئی انڈرسٹینڈ فاطمہ. انڈرسٹینڈ نہیں بولیں گے انڈرسٹینڈ کیا ہے اردو کا عربی میں ترجمہ کر رہی ہیں انگلش میں ہے کر رہی ہیں ازنو کا مطلب ہوتا مجھے ہے آئی تھنک اچھا ہاں I think مجھے لگتا ہے فاطمہ لائبریری میں ہے. کہ فاطمہ انا کا ترجمہ نہیں کرنا
مجھے لگتا ہاں ہے کہ بس فاطمہ جو ہیں بے وہ شک کہاں ہیں، لائبریری میں. بھائی بھائی انا بے شک فاطمہ تھا. ہاں بے شک کریں جو انا بھی کریں. انا انا کا بے شک بھی ہوتا اگر بھی ہوتا ہے انا کا نہیں نہیں وہ ان ان ہوتا ہے، ان ہوتا ہے. ان ہوتا ہے اگر اچھا ابھی اتنا نہ آگے دوڑے، ابھی ہم نے ان نہیں 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 پڑھا. میں ایسے پوچھ رہی تھی یہ انا اور کنفرینس انا دونوں کا میننگ بے شک ہوتا ہے، ایسے ٹھیک ہے، مطلب بے لیکن شک یہاں پہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہیں آئی تھنک فاطمہ از ان دا لائبریری. اردو میں کریں گی مجھے لگتا ہے کہ انا کا ترجمہ کے کریں گی، ٹھیک ہے، کہ فاطمہ کہاں ہے، لائبریری میں ہے. صحیح ہے. صحیح تو ازنو کے ساتھ ہمیشہ انا یوز ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ذہبہ کے ساتھ ہمیشہ الا یوز ہوتا ہے، خراجہ کے ساتھ من یوز ہوتا ہے. اسی طرح ازنو کے ساتھ یوز ہوتا ہے انا. انا اور ٹھیک ہے. انا اسی کے اندر ہے، آپ کہہ رہی تھی رائٹ، انا زنو کے اندر ہے. اب انا کہاں سے آ گیا؟ اچھا ایک ہی انا سے جو ہے وہ الگ ہے، وہ تو شروع میں آتا ہے نا الگ ہی ہے. جملے کے. وہ تو اچھا شروع میں اچھا آتا ہے، یہ تو درمیان میں آ رہا ہے نا، ازنو کے بعد آ رہا ہے، درمیان میں آ رہا ہے. یہ جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو انا درمیان میں آ رہا ہے. ٹھیک اور اگر انا آتا تو انا جملے کے شروع میں آتا ہے یہاں پہ. جی انا محمد دن ذهب الى مکہ تھا، تو انا اچھا درمیان میں نہیں آتا ہے، انا آتا ہے شروع میں. شروع میں اور انا جو ہوتا ہے وہ درمیان میں آتا ہے، پیچھے کوئی اور جملہ ہوتا ہے اور آگے کچھ اور ہوتا ہے، یہ درمیان میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آتا کس کے ساتھ ہے؟ ازنو کے ساتھ آتا. اچھا چلیں آپ کو تو سمجھانا اب آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے آپ کو. اچھا اگلا کریں ابھی. انتم مدرسون تم سب ٹیچر ہو. گڈ. یہ مبتدا اور یہ خبر، ٹھیک ہے. خبر جی. اب اس کے اوپر ازنو کو داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے. ازنو انہوں نے لکھ دیا پہلے سے، اب کریں. اظنو انا انا انہم مدرسون. انا ہوم کیوں؟ آخری ضمیر کے لیے لائیں گے نا. انتم انتم کے انتم لیے کا ہوم کم آتا ہوگا ہے. کم ہوگا انا کم بہت تنگ کرتی ہیں آپ، بہت تنگ کرتی. انا ٹھیک ہے. کم انتم کے لیے مدرسون. کم ہوگا، اگر ہوم جی ہوگا جی تب ہوم ہوگا. یہاں پہ ہاں ہوم تھا نا جی تو جی انا ہوم ہاں ہوگا. اور تم جی جی ہوگا، انتم ہوگا تو اس کے لیے کم ہوگا. کم ہوگا انا انتم کم کم. مدرسون. تو ہوں کیا ترجمہ جی ہوگا؟ آئی تھنک وہ سب ٹیچر ہیں. تم میرا سب. خیال سے وہ سب تم سب ٹیچر ہو. ہاں. تم کا مطلب تم ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، مجھے بتائیں. نہیں نہیں تم تم سب. سب ٹیچر. اچھا ابھی ہم نے گنتی کرنی، یہ والی ایکسرسائز ختم ہو. کسی کو پریکٹس کرنی ہے یا سمجھ آ گئی؟ سب کو آگے چلیں. آسان تھا نا؟ جی میں ہاں. اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دیتی ہوں جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ پورا کیا بن جائے گا، یہ تو فعل اور فاعل ہے نا، تو یہ اس کا مفعول بن جائے گا. پھر یہ پورا جملہ ون ورڈ بن کے اس کا مفعول. جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ نوٹ کر لے، جس کو نہیں آئی وہ اتنا ہی رہنے دے. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ آگے جا کے تو میں نے آپ کو بتانا ہی ہے، تو میں نے کہا چلیں یہیں پہ بتا دیتی ہوں. کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو رول ہے وہ رول ہے، تو اس کو کرنا ہی ہوتا ہے، تو پھر یہیں پہ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم نے ابھی کیا کرنے، کسی اور نے پریکٹس کرنی ہے کہ بس ہو گیا؟ کر لیں. آپ نے تو کر لینا، کسی اور سے پوچھ رہی ہوں ابھی. سمجھ آ گئی سب کو کیا کرنا ہے؟ انم آپ کو سمجھ آئیے کیا کیا ہم لوگوں نے؟ عائشہ صدیقہ، آپ کو تو میں آپ فلاور سے ہی پہچان جاؤں گی، آپ صرف عائشہ ہی رکھ لینا. عائشہ آپ کو سمجھ آئی؟ وہ بھی بزی ہے شاید، نماز پڑھنے گئی. رقیہ. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. رقیہ سمجھ آئی ہے میں نے کیا کروایا آج؟ یہ جملہ اسمی ہے، مبتدا خبر ہے، ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے ازنو کو داخل کرنا ہے. ازنو کے بعد لازم انا آتا ہے. تو جب انا آتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر یہ جو انتا ہوتا ہے وہ تو انتا نہیں رہتا نا، وہ تو منصوب ہو جاتی ہے ضمیر. تو وہ وہاں پہ کا لے آئے اور پھر طبیب ان کو ویسے ہی لکھ دیا.
तो इस तरह इसका मीनिंग क्या हो गया, आई थिंक, या मुझे लगता है, यू कहने, इसमें अन्ना ज़मीर है ना, मुझे लगता है कि आप जो हैं वो डॉक्टर हैं। तो जी, अन्ना मुझे का लगता मतलब है। यहाँ पे के आएगा, उर्दू में के आएगा, जी, अच्छा अच्छा। और जी इंग्लिश में करना है तो ना भी करें तो कोई बात नहीं। आई जी थिंक यू आर अ डॉक्टर, उसमें के ना भी लगाएं तो कोई बात, सही है। जी तो आप जी एक दो जुमले करके देखें तो मुझे पता लगेगा कि आपको समझ आई है कि नहीं, ताकि मैं आगे चलूँ साइड पे, अगली पे करें। जी मैम। हाँ, ये वाले जी, करें, अगला वाला हुआ मिनल याबानी करें। हुआ मिनल याबानी। हम्म, अ, हुआ मिनल याबानी। हम्म, हम्म, ज- जब आप जापान से हो, हम्म। है ना? आप, हाँ वो, वो जापान से है। हाँ आगे। अजुन्नु, हम्म, अ, अजुन्नु के बाद क्या अजुन्नु लगाएंगे, अन्ना, अन्ना। अन्ना, हम्म, अन्ना, अन्ना हम। होम क्यों आएगा, अन, हुआ का अन्ना होम तो का, नहीं होता। अन्ना अन्ना, का, देखिए लेफ्ट लेफ्ट हैंड में इसकी जगह कौन सी जमीर आती है, हु आती है ना। अन्ना हो, अन्ना हु अन्ना हो, मिनल याबानी। मिनल यहाँ याबानी। पे अंता था तो लेफ्ट हैंड में कौन सी आती है, का आती है, तो अन्ना का आएगी। का, अन्ना का। अभी फौजिया ने ज्वाइन किया, फौजिया आपको समझ आ रही है। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। असल में आप लोगों का नमाज का टाइम होता है ना, ये तो इसलिए। जी मैम, मैं असर अदा कर रही थी। हाँ मुझे पता है। अच्छा अब आप मुझे बताइए, ये समझ आ रहा है। देखिए ये है जुमला इस्मिया, मैं दोबारा से समझा रही हूँ, ठीक है। ये मुब्तदा है, ये खबर है, सही है। जी अब जी इसके मैम। ऊपर हमने अजुन्नु लाना है, दाखिल करना है। जी पहले हम क्या करते थे, इन्ना दाखिल करते थे, तो इन्ना दाखिल करते थे तो क्या हो जाता था, मुक्तदा जो है इन्नम, वो इस्म, इन्ना दाखिल करके देखिए इसके ऊपर अपने क्या बनता है, फौजिया। अन्ना, मंसूब, तो मुक्तदा मुक्तदा, मंसूब, ये मंसूब हो मुक्तदा। जाता है ना, तो क्या खबर हो जी, जाता है, मरफू। मंसूब हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, जी, फौजिया मंसूब हो जाता बताएं। है। अन्ना और खबर अन्ना, इसमें अन्ना। अंता को किस में चेंज करेंगे, इन्ना लगाया तो। जी अन्ता। मैम का, एक मिनट मैम। इन्ना क्या करता है, अमल करता है ना, क्या अमल इन्ना का। करता है। हाँ, अन्ना का इन्ना का होगा, हा क्यों होगा भाई, मंसूब हो जाएगा अन्ना का। इसकी जगह वही वाली जमीर लाएंगे ना, मंसूब वाली। तो अंता की का होती है ना, जी, अन, इन्ना का, हाँ इन्ना इन्ना का का, तबीबुन। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्ना का हो गया, सही है। और तबीबुन को ऐसे ही लगा देंगे। जी अच्छा ये आप अभी आप ये कर रही थी, तो इन्ना का हो गया, तबीबुन हो गया, ठीक है। जी। लेकिन आज हम ये नहीं कर रहे, अगर इस पे इन्ना दाखिल हाँ, करेंगे तो क्या इन्ना होगा, लगा। इसके ऊपर इन्ना दाखिल करेंगे तो ये यहाँ क्या हो पर जाए, इन्नहु, इन्ना हु हो जाएगा, ये वाली जमीर आ इन्नहु। जाएगी, हुआ की जगह ये वाली जमीर आ जाएगी। और फिर हम जी, क्या लगाएंगे, मिनाल याबानी लगाएंगे, इन्नहु ठीक है। मिनल याबानी। अगर इस पे इन्ना मैम, दाखिल, यहाँ इस पे पर याबानी आ जाता है, यबानु, यबान। अच्छा, मरफू नहीं बनता शायद। मिन की वजह से कैसे मरफू होगा, नहीं नहीं मैम, इन्ना इन्ना लगाए थे ना हम। तो इन्ना से क्या होता है, इन्ना ने तो इसको मंसूब कर दिया ना, इसको तो नहीं करना ना कुछ उसने, इसको तो एज इट लिख देना है यहाँ पे। अच्छा तबीबुन को अच्छा। भी एज इट लिख दिया था ना, तो उसको तो ऐसे ही लिख देना, ठीक है। तो इन्ना जी, हु इस तरह से हो जाएगा, मिनल याबानी। मिनाल खबर याबानी। ये मिन की वजह से जेर आ रही है ना, तो इसको पेश क्यों लगा रही हैं आप, जो रूल है वो तो रूल है ना। अच्छा अभी जी, यहाँ पे क्या होगा, या है तो क्या होगा इन्ना लगाने से, या, नहा। इन्ना हा हो जाएगा। यहाँ पे जी क्या होगा इन्ना लगाने से, इन्ना हुम, यहाँ पे क्या होगा, इन्ना के, इन्ना की, इन्ना की। और यहाँ पे क्या होगा, अल मकतबतु मफ्तूहतुन, इन्ना इन्नहा, अब जमीर इन्ना नहीं लगानी, जब जमीर होगी तब जमीर लगानी, जब जमीर नहीं है तो फिर क्या हिया करेंगे, हिया हिया, नहीं जब जमीर थी तो हम जमीर लगा रहे थे ना, अब तो जमीर है ही नहीं, अब तो नाउन है ना, तो इस पे इन्ना दाखिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। इन्ना नाउन,
ता बन नसब जाएगा, में ता चला बन जाएगा। जाएगा मैम। मंसूब मंसूब जबर दे देंगे ना। जैसे अल्लाह हू होता है तो इन्ना दाखिल करते हैं तो क्या होता है? इन्ना हाँ, हाँ, इन इन्ना अल्लाह हो जाता है ना। इन अल्लाह। हाँ, अल्लाह हू होता है और उसके ऊपर जब इन्ना दाखिल करते हैं तो ये पेश जबर में चेंज हो जाती है, इन अल्लाह हो जाता है ना। इन्ना मक्तब हाँ, जी इन्नल मक्तबा हो जाएगा, मक्तबता हो जाएगा, मफ्तूअतुन, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इस पे दाखिल जी। करें इन्ना। कहवता हाँ, इन बारिदतुन इन्नल कावता बारिदतुन, इसमें क्या होगा? इन्ना मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मदुन, मोहम्मद, मोहम्मदुन, मोहम्मद दान नहीं होगा। मोहम्मदन, मोहम्मदन होगा। इन्ना ना क्या, जी, इन्ना क्या करता है? मोहम्मदन हाँ, इन्ना क्या करता है? मंसूब करता है ना। मंसूब करता है, जैसे मोहम्मदन। जैसे हरफ जर मजरूर कर देता है तो इन्ना मंसूब कर देता है। देखिए जी, हरफ जर आया तो ये मक्तबतू जो है मक्तबती हो गया, है ना। जी तो जी। फी आने से, ये मजरूर करता है तो ये मंसूब करता है ना इन्ना। जी तो ये क्या हो जाएगा? मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मदन मोहम्मद दा तो नहीं होगा ना, नहीं 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 होगा। मोहम्मद दन होगा। जब दो जबर लगाते हैं तो अलिफ भी ऐड करते हैं, ठीक है। इन्ना मोहम्मदन ज़हाबा इलल मक्तबती, ये इन्ना का इसम बन जाएगा, ये इन्ना की खबर बन जाएगी। अब इस पे दाखिल करें, फातिमाता इन्ना फिल मकतबत, फातिमता फिल मक्तबती, इसमें क्या होगा? अब जमीर आ गई है। अंतुम जी मुदर्रिसूना अंतुम इन्ना लगाए ना पीछे, इन्ना, सब पे इन्ना दाखिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे बताएं। इन्नाकुम, इन्नाकुम, इन्ना कुम हो जाएगा, अंतुम कुम में, अंता का में, ठीक है, अंति की में। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जमीरें किस में चेंज हो रही होती है, सही है। जी तो ये तो इन्ना आपने दाखिल किया, इन्ना शुरू में आता है जुमले के, सही है। अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें अन्ना दाखिल करना है, इसी जुमले पर अन्ना दाखिल करना है। तो अन्ना भी वही काम करता है जो इन्ना करता है। जी तो अन्ना भी क्या करेगा? अंता जमीर को क्या करेगा? अभी इन्ना की बजाय अन्ना डालना है इसके ऊपर, ठीक है। अन्ना डालेंगे तो अन्ना भी वही काम करता है ना। तो ये अन्ना का तबीबुन हो जाएगा, सही है। यहाँ पे जी हुआ जी है तो अन्ना दाखिल करें तो क्या हो जाएगा? अन्नहु अन्ना हु हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ऐसे ही जी उठा के लिख देना, जी ठीक है। फिर ही या मरीदा तुमने अन्ना दाखिल करें, क्या होगा? हाँ, इन्ना हाँ, अन्ना, हाँ इन्ना हा नहीं होगा ना, अन्ना दाखिल कर रहे हैं अभी। अन्नहु अन्ना दरमियान में आता है, देखिए ये शुरू में नहीं आ रहा है। इन्नहु, फिर इन्ना, इन्नहु, अन्ना हु, अन्नहु, अन्नहु, अन्ना अन्नहु, हु, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आए तो ये क्या हो जाएगा? अन्ना अन्ना हुम है ना, अन्नहुम अन्ना, अन्ना हम हो। देखिए अभी हम इन्ना नहीं दाखिल कर रहे, अभी हम क्या दाखिल कर रहे हैं? अन्ना कर रहे अन्ना, हैं। अन्नहुम, अन्नहुम। और ये अन्ना जो होता है ये दरमियान में आता है, शुरू में नहीं आ सकता ये, इसलिए इसके पीछे अजुन्नु लगाया है ताकि ये दरमियान में आए, ठीक है। लेकिन काम वही करेगा, इसको मंसूब करेगा तो अन्ना होम हो गया। अब इसके ऊपर अन्ना दाखिल करें, अंति अन्ना अन्ना अंती, नहीं नहीं मैं यहाँ हाँ पढ़ रही थी हाँ हाँ, हाँ, करे करे, नक्की, अन्ना अंती का क्या होता है अजुन्नु, ऑपोजिट? इन्ना, अंता का क्या होता है की, ऑपोजिट? का अंता, अंती, ये का किया था ना इनका, आपने, अंता का इनकी, किया था ना यहाँ पे, तो अब अंती का क्या इनका, होगा? की, अन्नका इन्ना की, अन्ना की, अन्ना की हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अंती होगा तो की होगा, यहाँ पे अंता था तो जबर आई थी, का हुआ था, ठीक है। हुआ होगा तो हु आएगा, ठीक है। ये हुआ है, ये हु है, इसके ऊपर पेश भी है, हु है ये। यहाँ पे भी ये ही या है तो यहाँ पे हा आना था, किसने बोला था ये हो?
ये हा होगा, समझ आ रही है? हिया का जी क्या होगा? हा होगा। हाँ हाँ होम जो होता है वो दोनों तरफ होम ही होता है, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी दोनों होम ही होता है। अंति की हो जाता है। जी अब इस पे दाखिल करें अन्ना। अज़ुन्नु अन्ना मक्तबता अन्नल अन्ना मक मक्तबता अन्नल अन्नल मक्तबा तबता। अन्नल मक्तबता हाँ, इसको मफरूदत करें अन्नल। अन्नन कहवता। हाँ, अन्नल कावता। अब इसको जमीर में थोड़ी चेंज करेंगे, इसको तो नौ नहीं नहीं रहने देंगे ना। जमीर को जमीर में चेंज करना है, इसको नहीं करना, इसकी सिर्फ जबर चेंज करनी है। क्या हो गया जी फौजिया? थोड़ा जल्दी आ जाए करो क्लास में, आगे देखें यहाँ पर, मोहम्मद या मैं टाइम आगे कर अज़ुन्नु लेती हूँ। अन्ना मुहम्मदन अन्ना अज़ुन्नु मोहम्मदन अजहबा इला मक्कता, मोहम्मदन हो जाएगा। अभी पहले इन्ना था, अब अन्ना, अन्ना मोहम्मदन। अन्ना भी वही काम करता है जो इन्ना करता है, क्योंकि सिस्टर्स है ना, तो जी अन्ना लगाएंगे तब भी मोहम्मदन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अन्ना। अन्ना फातिमता अन्ना फातिमा। और यहाँ पर अन्ना। इन्नकुम, अन्ना अच्छा अंतुम हम्म, सुना, इन्नकुम इन्ना तो है ही नहीं हमारे पास, इन्ना तो अन्नकुम दरमियान में आता ही नहीं ना। अन्नकुम अन्ना को अन्नकुम। इन्ना तो दरमियान में आते ही नहीं। ये देखें, मैं दरमियान में लिख रही हूँ, पीछे जुमला आ रहा है एक, और ये आ जी रहा है अज़ुन्नु अजुन्नु। अन्नकुम अजुन्नु अन्नकुम मुदर्रिसूना। मुदर्रिसूना इसका मतलब क्या होगा? अजुन्नु अन्नकुम मुदर्रिसूना। मुझे लगता है कि आप जो हैं सब आप क्या हैं? आप सब आप टीचर्स हैं सब टीचर हैं। तो अन्ना आएगा तो फिर अंतुम नहीं लगा सकते, अन्ना या इन्ना आएगा तो कुम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अन्ना दरमियान में आएगा, उसके साथ भी कुम नहीं आएगा। इन्ना शुरू में आएगा, यहाँ पे शुरू में लगाया था, जुमले के शुरू में, ये सब शुरू में लगाए थे। इन्ना शुरू में आता है, अन्ना दरमियान में आता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई है। तो मुझे लगता है कि तुम सब क्या हो? तुम टीचर हो। टीचर्स मुझे लगता है कि फातिमा जो है लाइब्रेरी में है। मुझे लगता है कि मोहम्मद मक्का चला गया है ना? मुझे लगता है कि कावा ठंडा है। मुझे लगता है कि लाइब्रेरी खुली है। मुझे लगता है कि तुम भूखी हो। सही है। मुझे जी लगता है कि वो जो है स्टूडेंट हैं। मुझे लगता है कि वो मरीजा है, बीमार है। मुझे लगता है कि वो, ये जो है ना मुअन्नस के लिए ज़मीर है, ये हु जो है ये मुज़क्कर के लिए। यहाँ भी फर्क है, यहाँ भी फर्क होगा। वो क्या है? लड़का जो है जापान से है। जी अच्छा, यहाँ पे क्या है? मुझे लगता है कि, अन्ना का मतलब कि तुम तालिब भी मदरसे से तबीब डॉक्टर हो डॉक्टर 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 हो। तबीब और तालिब का ही नहीं पता भी। चलें, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, इतनी जल्दी वो पिक करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आप लोग पढ़ा पढ़ा के भी पूरा इसम पढ़ा के आई हूँ, फिर भी इन्ना हम और बड़े अन्ना। बच्चे बूढ़े हम बड़े बच्चे। बच्चे वो तोते। बूढ़े बच्चे बच्चे भी बूढ़े, बूढ़े भी बच्चे ही हो जाते हैं, उनको सही समझाना और बात मुश्किल है। सही बात। उनमें तो जिद भी आ हमारी जाती। मेमोरी फुल हो जाती है बड़े होके मैं भी तो बूढ़ी हूँ यार, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुम सबसे बड़ी हूँ, तो फिर हम्म। तो अब समझ हाँ आइए, दोबारा भी करवा दी मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह फौजिया, बहुत अच्छा समझ फौजिया की वजह से दोबारा करवाई। तो जी अजुन्नु के साथ क्या आएगा? अन्ना आएगा हमेशा। अन्ना आएगा अजुन्नु अज़ुन्नु जब के भी साथ आएगा अन्ना आएगा, जैसा आपका जहाबा के साथ इला आता है, खराजा के साथ मिन्ना आता है, इसी तरह अजुन्नु के जी साथ अन्ना आएगा। और अन्ना का जो इसम होगा वो मंसूब होगा, और आगे खबर कुछ भी हो सकता। अभी आ जाए गिनती पे। इकरा मा यली, फौजिया पढ़ो। जी मैम। हम्म, इकरा माली, हम्म, पढ़ो जो आया है। हम्म, ईदा अशरतन अशरतत तालिबतन। हम्म। इहदा हम्म, अशरता तालिबतन, ये अदद है और ये क्या है? सो क्या मादूद क्या? ये मादूद है। माद दोनों मिलके क्या बनते हैं? मुरक्कब बनते हैं। कौन सा मुरक्कब बनते हैं? मुरक्कब
इजाफी इशारी क्या बन रहा है? कब अदादी बन इसाफी। अददी। मुरकब अददी। अदद मादूद है तो अददी बनेगा ना। जी जी मुजाफ मुजाफ इलैह होगा तब इजाफी बनेगा। मौसूफ सिफ्त होगा तो तौसीफी बनेगा। एक इशारा होगा, मुशारा इलैह होगा तो मुरक्कब इशारी बनेगा। एक हर्फ जर होगा, आगे मजरूर होगा तो मुरक्कब जारी बनेगा। एक अदद होगा और दूसरा मादूद होगा तो मुरक्कब अददी बनेगा। अदादी। अददी बनेगा। जो अददी। चीज मैं बताती हूँ उसको याद कर लिया करो, ठीक है। अब ये जी पूरा जी। अदद है, पूरा अदद है, ठीक है ना। डबल डिजिट शुरू हो गई है आपकी। पहले आपने 3 से 10 तक गिनती सीखी थी, वो क्या थी? सिंगल डिजिट थी, है ना। 1 से 10 तक कर लें या 3 से 10 तक कर लें, ठीक है ना। वो आपने सीखी थी 1 से 10 तक, वो सिंगल डिजिट थी। अब डबल डिजिट आ रहे हैं। डिजिट समझते हैं ना? जी मैम। हाँ, तो ये डबल डिजिट हो गया अभी, ठीक है। तो अभी ये अदद डबल डिजिट में आ रहा है और सब पे जबर आ रही है। इहदा अशरता, अशरता, इस पे भी जबर आ रही है, उस पे भी जबर आ रही है। तो इसी तरह इसको करना है। 12 में क्या है? 12 में भी सब पे जबर आ रही है, जी सब पे इसमें जबर आ रही है। देखिए सब पे जबर आ रही है, हम्म, यानी ये मबनी है सारे, आपको कुछ भी नहीं करना, जी बस अशरता नहीं करना, अशरता करना है। यहाँ पे सुकून आएगा, अशरता नहीं, यहाँ पे जबर नहीं देनी। ये आपने एक सुकून का ख्याल रखना, बाकी ठीक है। तो 11 को क्या बोलते हैं? पढ़ें। इहदा अशरत तालिबतन। हम्म इस्नता अशरत तालिबतन। हम्म। सलासा अशरत तालिबतन। अब इसमें कोई चेंजिंग आई है? देखें 13 से कोई चेंजिंग आई है? 13 से आई है मैम। क्या आई है? यहाँ पर मोनस है, यहाँ पर भी मोनस, यहाँ पर भी। हर जगह मोनस है, यहाँ भी मोनस है, यहाँ मुजक्कर भी है ना पहले। हाँ, यहाँ पहले देख, मुजक्कर है। हाँ देखिए, मेरी बात सुने। ये मोनस है ना, ये जी मोनस है ना, तो इसके जी साथ वाला भी मोनस है, सही है। लेकिन जी उसके साथ वाला जो है, शुरू वाला जो है, जो 3 है, 3, वो मुजक्कर आ रहा है। जी मुजक्कर। यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे ये भी मोनस था, ये भी मोनस था, ये भी मोनस था। यहाँ पे भी ऐसे ही था, ये भी मोनस था, ये भी मोनस था, ये भी 11 और 12 तो बिल्कुल अलग ही होते हैं ना, वो सारे एक ही जी जैसे होते हैं, सारे मोनस या सारे मुजक्कर, ठीक है। अहदा अशरा तालिब तालिबन, तो देखिए अब वो मुजक्कर हुए तो सारे मुजक्कर हो गए। अहदा अशरा, है ना, अहदा अशरा तालिबन, तो सारे ही मुजक्कर हैं। फिर इसना अशरा तालिबन, लेकिन यहाँ पे जब मोनस हुए तो सारे ही मोनस हो गए, ठीक है। अच्छा, अब 13 से क्या है कि आपका ये वाला अगर मोनस है ना, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है उसको मुजक्कर बनाना है, ठीक है। इसका जो बिल्कुल इधर आ रहा है ना, ये वाला, इसको मुजक्कर बनाना है, और इसके साथ वाला जो है उसको मुअन्नस ही रखना है, ठीक है ना। अगर मैं कहती हूँ 11 मेल स्टूडेंट है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे? 11 तालिब इल्म, 11 तालिब इल्म। मेल है ना ये, तालिबा तो नहीं है ना, ये तो फीमेल है ना तालिबा। जी जी जी। ये इहदा तालिब, ये अशरत तालिब है। तालिबन। इसको क्या तालिब बोलेंगे बताएं, कैसे इसको मैं लिखेंगे? इसको अरबी में बताएं। इहदा तालिब को मुजक्कर को यहाँ पर। पूरे का इस तरह बनाएं, अरबी में अच्छा, बनाएं। इहदा इहदा तो अशर मुअन्नस है ना। इहदा अहदा 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 अशरा। अशरा, अब ये अशरा है, आप अशरा लिखेंगे, जी ठीक है। जब मुजक्कर होंगे ता- तो सारे ही मुजक्कर होंगे, ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर। आगे तालिक, यहाँ क्या आएगा? अशरा ये तालिब। ये अदद हो गया ना 11, आप तालिब इल्म लिखना है। मगर मुजक्कर लिखना है ना मैम यहाँ पर। हाँ लिखे ना, हम्म, तालिबन, तालिबन तालिबन। तालिबुन नहीं लिखना, तालिबन लिखना है। यहाँ भी मंसूब है, यहाँ पे भी मंसूब है। अब हमने लिखने हैं 12 तालिब इल्म, इसी को मैं जी 2 में चेंज कर देती हूँ, ठीक जी है। जी जी। 12 स्नता तालिब,
इस्नतानी इस्ना हाँ इस्ना इस्नाले अशरा तालिबन। इस्ना अशरा तालिबन, जी ठीक है ना, अशरा जी तालिबन। ये 11 और 12 जो होते हैं ना, ये बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम। सारे मुजक्कर और सारे मुअन्नस। ये सॉरी ये भी 12 भी मुजक्कर ही है ना, इस्ना ये मुजक्कर है, इस्नता तो नहीं है ना, मुअन्नस तो नहीं है ना। नहीं और ये अशरा भी क्या है, ये भी आपका मुजक्कर ही है और ये भी मुजक्कर ही है। अब जब 13 से गिनती शुरू होगी, अब मैं बोलती हूँ 13 तालिब इल्म लिखो। 13 तालिब इल्म कैसे लिखोगे? सलासा सलास अशरा। सलासा नहीं लिखेंगे। नहीं यहाँ पर आएगा मुनस फिर नहीं, हाँ, अगर ये मुनस ही मुजक्कर आएगा, है तो यहाँ पे क्या आएगा, मुनस। मुअन्नस आएगा। तो क्या आएगा, सलासा तो नहीं आएगा ना, सलासा सलासु सलासतु। सलासतु हम्म, अशरा अशरा नहीं, तालिबन। अशरा 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 तालिबन। तालिबन, 13 स्टूडेंट, जी ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, जब यहाँ पे मुजक्कर है तो इधर उसके ऑपोजिट क्या हो गया, मुअन्नस आ गया, जी ठीक है। अब मुज़क्कर। हमारे पास क्या हुआ, जब यहाँ पे मुअन्नस आया तो इधर मुजक्कर हो गया। जी यहाँ पे तो सब सेम ही थे ना, पूरे ही मुअन्नस थे, पूरे ही मुजक्कर थे 11-12 में, तो सारे मुअन्नस थे, सारे मुअन्नस थे, ठीक है 11-12 में। 13 में क्या हुआ, जब यहाँ पे आपका मुअन्नस आपने देखा तो अब यहाँ पे आप सलासा तो नहीं लगा सकते, नहीं नहीं मुनस इसका ऑपोजिट लगाएंगे। ये मुअन्नस है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, मुज़क्कर मुज़क्कर। मुजक्कर लगाएंगे, बस ये समझा रही हूँ। यहाँ मुजक्कर था तो ये मुअन्नस लगाया, जी ठीक है, बस यही तब्दीली करनी है और कुछ नहीं करनी। देखिए अब इसमें देखें तो ये तालिबतन मुअन्नस है तो ये अरबा आ गया, है ना। जी यहाँ तालिबतन मुअन्नस है तो खमसा आ गया, खमसा तो नहीं आया ना। नहीं नहीं लेकिन ये खमसा। साथ वाला जो है ये मुअन्नस ही रहेगा, क्योंकि ये भी मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है। यहाँ पे भी देखे ना, ये मुजक्कर है तो ये मुजक्कर है, अशरा, है ना। चेंज जी किया हुआ है, ये वाला चेंज हुआ है, समझ आइए। अगर जी यहाँ जी मुजक्कर होगा तो ये भी मुजक्कर रहेगा, साथ वाला भी, और ये मुअन्नस होगा, जी ठीक मैम। है। यहाँ अगर पर ये आपका सूरा ताल। मुअन्नस है, साथ वाला भी मुअन्नस रहेगा, ये मुजक्कर होगा, जी जी ठीक है। तो पढ़े अभी सलासा अशरत तालिबतन। सलासा अशरता तालिबतन। हम्म अरबा अशरता तालिबतन। हम्म, खमसा अशरता तालिबतन। हम्म, सित्ता अशरता तालिबतन। हम्म। सबआ अशरता तालिबतन। समानिया अशरता तालिबतन। तिस्आ अशरता। समानी मुजक्कर है या मुअन्नस है, सब सित्ता ये सब मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। ये सब मुजक्कर है, ठीक है। समानी भी मुजक्कर है, समानिया जी तू होगा तो मुअन्नस होगा। और ये जी मुजक्कर क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर मुअन्नस है। जी यहाँ पर जब लिखेंगे तालिबान तो अशरा, और यहाँ पे आप समानिया तू लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जी सलासा तू लिखा है ना, यहाँ समानिया तू लिखेंगे। अगर मैं कहती हूँ 18 मेल स्टूडेंट, तो कैसे लिखेंगे, 18 मेल स्टूडेंट। तो यहाँ पे तो समानिया तू हाँ समानिया तू अशरा अशरा अशरा, तालिबन। समानिया तू, ये पहली वाली है, ये वाली एक्सरसाइज तुमने पहले की हुई है, जी मुजक्कर वाली। मैम। तो अभी तो आज हम मुअन्नस वाली कर रहे थे ना। जी समानिया जी तू अशरा ऐसे ही रहेगा, जी क्योंकि इसके साथ ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर ही रहेगा, अशरा तालिबन। ये भी अदद मादूद बन रहा है ना। तो माबदूद जी कैसे आ रहा है, मंसूब आ रहा है और वाहिद आ रहा है। जब दो जबर लगाते हैं तो आगे अलिफ लगाते हैं, तालिबुन तो ऐसे लिखते हैं ना, जी तो ठीक है। तालिबुन तो जी नहीं लिखना हमने, तो तालिबन लिखना है, तो दो जबर लगा के आगे अलिफ लगाएंगे, ठीक है। जी लेकिन इसमें तो दो जबर के बाद अलिफ नहीं लगाते ना मुअन्नस में। ये सारे रूल जो पढ़े हैं इनको अप्लाई करना है ना यहाँ पे। जी ऐसा नहीं कि आप दो यहाँ पे भी उठा के दो जबर आ रहे हैं तो अलिफ लगा दें, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। समझ आ रही मेरी बात। तो ये जी है मैम। सारा अच्छा। तो यहाँ पर आपका समानिया के बाद 19 आ गया। जी तिस्सा हम्म, अशरत हम्म। तालिबतन। अब ये मुअन्नस है तो इश्रीन। ये मुजक्कर आया, तिस अतू नहीं आया।
नहीं अरबी जुबान में जो गिनती होती है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों होती है, तिस्अतु भी होती है और तिस्आ भी होती है। तो अगर यहाँ पे मुअन्नस है तो यहाँ मुज़क्कर लगा लो, अगर यहाँ मुज़क्कर है तो यहाँ तिस्अतु लगा लो, ठीक है। तो फिर ये बीच वाला क्या आएगा, बीच वाला कैसे आएगा, ये तो आपने अपोजिट कर दिए, ठीक है। ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर कर दिया, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस कर दिया। बीच वाला कैसे आएगा, उसको कैसे लिखेंगे, किसके मुताबिक लिखेंगे, मुज़क्कर लिखेंगे या मुअन्नस लिखेंगे? मादूद के मुताबिक। मादूद के मुताबिक लिखेंगे। यहाँ पे तालिबान है तो इसको मुज़क्कर लिखा है, बस इतनी सी बात है, इसको ऑपोजिट करना है, ठीक है। साथ वाले को ऐसे ही रखना है और इसको ऑपोजिट करना है। 20 के लिए तो फिर वो है ही नहीं, 20 तो इशरूना होता है और तालिबातन, ठीक है। अगर 20 लड़के होंगे तो फिर क्या बोलेंगे, इशरूना इशरूना तालिबान। तालिबान, ठीक है। यहाँ पे तालिबातन है, यहाँ तालिबान हो जाएगा। अब इसमें ये अदद क्या है, मादूद क्या है, अदद क्या है ये मादूद के? अदद है इसमें मुज़क्कर, अदद है इसमें जमा जमा, सॉरी ये अदद है ना, 20 इशरूना, 20 जी, ये ये अदद है। हाँ ये अदद है 20 20, और ये क्या है, स्टूडेंट, ये मादूद। मादूद। मादूद का मतलब क्या होता है, जो गिना जाए। हाँ जिसको गिना जा रहा हो ना, जी तो वो मादूद होता है। तो अगर 20 का अदद है तो चाहे मुअन्नस है चाहे मुज़क्कर है, जी वो इसी तरह ही आएगा, बस और कुछ नहीं होना। इशरूना के साथ तालिबतन के साथ भी इशरूना ही आएगा, तालिबान के साथ भी इशरूना ही आएगा। चलिए अभी हम ये करते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी। पढ़ें यहाँ से, इकरा। इकरा मा यली हाँ तुबहु मा किताबतिल अरकामी वरदती फीही बिल हुरूफी। एक दो जुमले करें। जी मैम। अच्छा क्या है इसमें, इकरा मा यली, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सुम्मा फिर क्या करो, उक्तुबहु लिखो उसको, जुमले को लिखो, मा किताबतिल अरकामी। ये जो रकम है ना, ये रकम, इसको फिगर्स कहते हैं ना, जी इसको मैम। फिगर्स कहते हैं। तो इन फिगर्स को आपने किस में चेंज करना है, अरबी में। अरबी में चेंज करना है। तो कम सिन्नू का, इसका मतलब क्या होगा, कम सिन्नू का? कितने दांत है नहीं आप कितने साल की हैं, आप कितने साल के हो, जबर है ना। जी 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 लड़के से पूछा जा रहा है कि आप कितने साल के हो, है ना। जी अच्छा उसके बाद क्या है, सिन्नी, जी मेरी उम्र है 19 ये लिख रहा है। हाँ सिन्नी मेरी उम्र, सिन्नू का मतलब है तुम्हारी उम्र कितनी है, तो सिन्नी वो कह रहा है, का की बजाय या लग गई ना, सिन्नी, है ना। जी जी और 19 साल है, तो 19 को कैसे चेंज करेंगी, 19 ये मादूद है ये अदद है, चेंज करें इसको भी। सिन्नी, तिस तिसआ ये मुअन्नस है ना, तो ये वाला क्या आएगा, शुरू वाला। मुज़क्कर। हाँ तो 9 को क्या कहते हैं, तिस तिसातुन तिसआ। हाँ तिस आ, ये मुअन्नस है तो तिस आ आएगा। जी और मैंने बताया था इन सब पे जबर ही आती है, आपने पेश वेश जी नहीं लगानी। तिसआ 19 से 20 तक जो गिनती होती है ना, सब पे जबर ही आएगी, तिस आ, आगे तिस अशरा ओ नहीं होगा, तिस नहीं ओ तिसआ नहीं होगा, तिस आ, आगे क्या है, अश, अशरता हाँ अशरत। ये वाला मुअन्नस है तो ये वाला भी मुअन्नस ही आएगा ना। जी जो सिन्नत सनत उनके साथ आएगा वो मुअन्नस ही आएगा। अशरा क्या होगा, अशरता, सब पे जबर लगानी है। जी जी अशरता 19 से 20 तक गिनती, या 11 से 20 तक जो गिनती होती है ना, उसमें सब जो होते हैं ये मबनी होते हैं, असल में मबनी है, सारे मबनी है। तो मबनी क्या होता है, एक ही जैसे रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो तिस अशरता, आगे क्या आएगा, ये 20 तक ऐसे ही रहेगा, जी तिस अशरता, यहाँ क्या लगाएं, मेरी उम्र सिन्नी
تسعة عشرة 19 के बाद क्या आ रहा है? عشرون 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 सनातन, ये मादूद है ना, और ये अदद है, ये अदद है और ये मादूद है ना? तो मादूद की जी जगह मादूद लाएंगे और अदद की जगह अदद लाएंगे। ठीक सही है। जी जी तिस अशरता क्या है? 19 है, और सनातन क्या है? मादूद है। सब पे जबर लानी है सिवाय इस शीन के, सब पे जबर। अच्छा आगे देखें, कुरानन कराना, पढ़े आगे 14। 14 हम्म, हाफिज अच्छा 14 सफ़तन मिन हाज़ल किताबी किताबी, हमने पढ़ा या हमने पढ़े 14 सफ़े इस किताब इस में किताब से। अब बताएं जी मुझे, इसको आपने लिखना है अरबी में बस। जी सित्ता ये 4 है मेरी बहन, सित्ता एक मिनट मैम अरबा नहीं अरबा अरबा, 14 है हाँ अरबा, ये आपका मुअन्नस है ना, तो ये क्या है? अरबा मुज़क्कर आएगा। अरबा अरबा आगे अशरता अश अशरा अशरता, जी अशरता अशरा नहीं बोलना, अशरता, अशरता पक्का करें इसको, ठीक है? अशरता, और यहाँ सफ़हतन, सफ़तन मुश्किल है। नहीं मैम अगर ये देखिए, इसको मंसूबी लाने, ठीक है? जी और ये आपका मादूद है, ठीक है? और ये जी आपका अदद है। अब इस मादूद के साथ जो है उसको मुअन्नस लाना है और इसको मुज़क्कर लाना है, ठीक है? जी चलिए कोई और प्रैक्टिस करेगा? मैं करूँ? आज हम्म। हाजिहिल हाफिजती, 18 को लाना, रा के बाद राकिबन, फिर 10 लाना है, राकिबातन, ये राकिबातन 15 है। 15 है, सॉरी, हाँ 15 अरबी आ में ना गया। ये होता है आपका जीरो, जीरो जो होता है ना वो डॉट होता है अरबी में, गोल नहीं होता, वो हम्म, इंग्लिश में होता है। देखिए यहाँ पे हम्म, कहीं 10 आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे नजर ये नहीं आ आ रहा है ना, ये रहा। देखें, ये जीरो होता है अच्छा अरबी में। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हाँ इसके मतलब अलावा बात। आता है तो वो 5 होता है, ये 5 है। हम्म, तो 18 राकिबन का क्या करेंगे? पहले लिखें 18। 18 होगा 8 के लिए क्या होता है? सामी, 8 होता समानी, है समानी समानी। समानी क्योंकि मुजक्कर लाना है ना। आगे जी, क्या है? ये सानी राकिबन है ना, तो इस यहाँ पे क्या तो लाएंगे अब? मुजक्कर आएगा, अच्छा एक अशरा। सेकंड, एक जी सेकंड, राकिबन मुजक्कर है ना, जी, तो इसके ऑपोजिट लाना है ना यहाँ पे। ये मुजक्कर है तो यहाँ पे हाँ, ऑपोजिट लाना है ना, और ये समानिया, समानियता, समानियता आएगा, समानियता, समानियता। ता, ठीक है, अब बीच में क्या आएगा? अशरा, समानियता अशर। मुजक्कर आएगा, ये मुजक्कर है तो ये इधर भी बीच में मुजक्कर ही आएगा। अभी देखिए ना, जी, आपको मिक्स करके करवा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। राइट, ये मुजक्कर है, ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है, और उसके अपोजिट वाला जो होगा मुअन्नस हो। ठीक राइट, है, सबको समझ आ गई है? अब 15 जी, राकी बतन है, ये मुअन्नस हमसा, है। हाँ, हाँ तो अब हमसा आपका अशरता, हम्म, हमसा अशरता। हाँ खमसा आएगा, समानी ने लिख दिया दोबारा। यहाँ पे 5 है तो खमसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम्म मुअन्नस है ना, तो यहाँ खमसा लाएंगे। हम्म ठीक है, और आगे क्या है? हम्म और खमसा के बाद क्या लाएंगे? हमसा अशरा, अशरता, हाँ अशरता अशरता, क्यों ला रहे? अशरता बिकॉज क्यों ला रहे? के बाद तन मुअन्नस है तो फिर मुअन्नस आएगा हाँ उसके साथ। राकी बतन है, ठीक है, मुअन्नस है। मैं चाहती हूँ सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करें ताकि सबको आ जाए, मुझसे लिखा नहीं जा रहा बिल्कुल। अच्छा अभी नेक्स्ट कौन आ रहा है? शाहिदा, आप ट्राई करेंगी? शाहिदा, आईफोन वाली। मम्मा करूँ एक?
جی آ, السلام علیکم. میں वालेकुम دراصل نئی अस्सलाम اسٹوڈنٹ ہوں वालेकुम تو अस्सलाम. میں بس ابھی میں نے آن کیا تھوڑی دیر پہلے تو میں अच्छा ذرا ویک سے کوئی میم بات ایک انشاءاللہ کر لوں میں शायद आप आती ایک रहे. کر لوں अच्छा میں मुझे बताया था नाइला ने आपके बारे में, ठीक है. جی तो جی جی आप تو आती रहे, انشاءاللہ कानों में कुछ ना جی कुछ पढ़ता انشاءاللہ रहेगा اور आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, तो रिवीजन भी हो جی जाएगा. सही انشاءاللہ है. ओके انشاءاللہ انشاءاللہ. चलें ठीक है. بہت بہت مہربانی. جزاک اللہ خیر. इट्स ओके. अच्छा कौन कह रहा था मैंने करना है? रुकैया कह रही थी. میں चलिए کروں گی میم جی میم फौजी आपने कर लिया, रुकैया आप करें. جی उस्मानु. عثمانو لہو अच्छा ये ऊपर वाला रहता है हाजा अहदा फुंदुकुन, हाजा फुंदुकुन रहता है ना. हाजा फुंदुकुन हाजा इशारा है. फुंदुकुन क्या है? फुंदक किसको कहते हैं? होटल को कहते हैं ना. होटल, हाँ होटल, रेस्टोरेंट नहीं, होटल जिसमें रहते हैं جی जाके. ریسٹورنٹ याद है मक्के में रहे थे? صغیر आयशा याद है होटल में रहे थे ना? वो फुंदक होता जी है. उस्ताद रेस्टोरेंट जी होता है उस्ताद जहाँ पे आप बाहर खाना खाते हैं. होटल वो जी उसको रेस्टोरेंट कहते हैं. तो फुंदकुन होटल होता है. सगीरुन छोटा. ये छोटा होटल है. ठीक है. तो ये आपका मुब्तदा हो गया और ये दोनों मिलके खबर हो गया. ठीक है. جی अगर ये جی मुरक्कब शारी होता तो इन दोनों को मिला के मुब्तदा बनाते हैं, लेकिन ये मुरक्कब शारी नहीं है, इसमें गैप है. गैप दे सकते हैं. तो ये मुब्तदा और ये खबर हो गया. फी ही खबर मुकद्दम हो गई. और 12 गुरफतन ये आपका क्या है? फकत. तो इसको आपने अरबी में चेंज करना है. इसमें 12 कमरे, छोटा होटल है तो 12 कमरे हैं. तो 12 कमरे को कैसे लिखेंगे? جی ये वाला, اسنانی لکھیں گے میم اسنانی हाँ हाँ, ये मोनस है. तो जब हम 12 का अदद बनाते हैं ना तो सारे ही मोनस लिखते हैं या फिर सारे ही मुजक्कर लिखते हैं. ठीक है. جی उसमें अपोजिट नहीं लाते. 11 और 12 में अपोजिट नहीं लाते. अगर मुजक्कर ला रहे हैं तो सारे ही मुजक्कर लाएंगे और मोनस ला रहे हैं तो सारे ही मोनस. तो अब 12 का अदद है और ये मोनस है, तो आप इसको भी क्या करेंगी? 2 को भी मोनस ही लाएंगी. तो क्या होगा? جی इसना या इसनता? اسنانی हाँ اسنتا हाँ इसनानी. اسنتا हाँ इसनता. इसनता اسنتا عشرتا अशरता. वेरी गुड. सारे मोनस आएंगे. غرفتن हाँ गुरफतन. अशरा इसके ऊपर सुकून आएगा. अशरतन. अशरता तो नहीं होगा, अशरतन جی होगा. عشرتن आगे غرفتن गुरफतन. ये नहीं मुजक्कर होगा, इसको मेरे ख्याल में एक ही रखेंगे. इसना अशरता. आगे क्या है? غرفتن गुरफतन. इसको लाएंगे 2 ज़बर. ठीक है. इसको मंसूब करना है क्योंकि ये आपका वो है ना, तमजीज भी कहते हैं इसको, मादूद भी कहते हैं. गुरफतन. मैं ऊपर से देख लेती हूँ, मुझे याद नहीं. यहाँ पर हमने ऊपर जो किया है ना, ये वाला देखें, एक ही जबर आ रही है यहाँ पे. यहाँ 2 जबर आ रहे हैं, यहाँ पर एक ही आ रही. सही है. अभी आपने पता क्या लिखा है? ये 12 वाला किया है ना आपने, तो 12 جی में جی جی पूरे ही मोनस اسنتا है. हाँ جی इसमें पूरे ही عشرتا मोनस تعلیم है. पूरे मोनस है. इसमें भी ये मोनस है तो पूरे ही मोनस है. लेकिन यहाँ 13 से जाके ऑपोजिट हो गया है. ये मोनस है, इसके साथ वाला भी मोनस है, लेकिन ये मुजक्कर हो गया. सही है. समझ आ गई. चलें अभी हाँ ये हो गया. अब उस्मानु लहू. फकत का क्या मतलब हुआ? عثمانو गुरफत फकत 12 फकत कमरे फकत लिखती नहीं क्या थी होता खत में, कब अपने روم अब्बू को खत लिखते हो? फकत आपकी बेटी ओनली है? आबिदा लिखती थी कभी खत अच्छा, मैंने अब्बू को? غرفتن कभी लिखा नहीं है क- खत में। कभी जिंदगी में खत ही नहीं लिखा आपने? नहीं, उर्दू में नहीं लिखा। इंग्लिश में लिखा है तो आप लैंड पे सिंसियरली, ओनली क्या फकत लिखती का थी? मतलब इससे क्या होगा मतलब? कभी स्कूल में एप्लीकेशन नहीं लिखी? नहीं, इस ओनली ना योर्स, ओनली योर्स. इस, कभी हस्बैंड को इस खत नहीं लिखा? नहीं, हाँ चलें. तो इसका मतलब होता है ओनली. ओनली. हाँ ओनली. فقط सिर्फ فقط तुम, सिर्फ فقط तुम्हारी. अच्छा, ठीक है. तो इसका मतलब होता है ओनली, मेरे सिर्फ. 12 कमरे हैं सिर्फ, ये होगा। हाँ सिर्फ, ओनली. ठीक है. ओके, चलिए. ठीक है। मैंने कहा आता होगा इसलिए मैंने नहीं बताया ना. किस किस को आता था फकत का मीनिंग? पहले से पढ़ा हुआ है हमने, किताब में भी पढ़ा है.
अब शीन को जी आता था। चलें आगे। उस्मानु लहू 11 अशर इब्नन। अहदा 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 शाबाश। अहदा अहदा अशरा अशरा। अशरता। आता है ना कुरान में आधा अशरा, सूरह यूसुफ में है ना अशरा। हाँ मैम। वहां तो कौकबन आता है ना, यहाँ अहदा अशरा अबना इब्नन। इब्नन इब्नन इब्नुन होता है तो फिर उससे इब्नन हो जाता है। इब्नन इब्नुन से इब्नन नस्बी हालत है ना। इब्नुन इब्नन इब्निन, तो ये इब्नन है। अच्छा 12 बेटियां हैं। अब 12 बेटियों का बताएं। तो यहाँ पर ये मोनस है ना, ये इसनता मोनस है। जी इसनता इसनता अशरता इसनता अशरता। बिनता। आप सही समझ गई हैं, सबसे अच्छा समझा आपने। अशरता आगे क्या आएगा यहाँ पे? बिनतन। बिनतन अब बिनतन जो होते हैं ना, जरूरी नहीं होता कि गोल ता वाला ही हो तो वही मुन्नस बनेगा। बगैर लंबी गोल ता ता वाला के भी, हाँ बगैर गोल ता के भी मुन्नस आता है ना। उख्तुन आता है, बिनतुन आता है ना, उम्मुन आता है। तो उसकी जब नस्बी हालत बनाएंगे तो 2 जबर लगाएंगे तो अलिफ ऐड करेंगे। लेकिन गोल ता वाला होगा तो फिर नहीं करेंगे अलिफ ऐड। ये भी मुन्नस है लेकिन ये गोल ता के साथ है तो इसमें नहीं ऐड करेंगे, इसमें करेंगे क्योंकि इसमें गोल ता नहीं है ना, तो अलिफ ऐड करेंगे। अना हफिज़तु 13 सूरा। 13 सूरतें में मैंने 13 सूरतें याद कर ली हैं। तो क्या होगा? अना हफिज़तु। ये बाकी जुमला वैसे ही लिख देना है, इसको बस चेंज कर देना है। 13 सलासा सूरा है ना तो सलासा हो जाएगा, ठीक है, मुजक्कर हो जाएगा यहाँ पे। आगे अशरता अश अशरता सूरतन अशरता। यहाँ चूंकि आपका सूरत तन आ रहा है तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ये मुन्नस आएगा। अशरता एक जबर के साथ। सूरत तन पे आपने 2 जबर लाने हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा फी हाजल मुस्तशफा 19 तबीबन। 19 9 को क्या कहते हैं? तबीबन है तो यहाँ पे मुन्नस आएगा ना। तिसआ तिसआ नहीं तिसअता तिसअता, ठीक है। अशरा अशरा तबीबन अशरा, वेरी गुड। अशरा और तबीबन। अब देखिए इसको आप लोग जरा, ये आपका मुजक्कर था, इसका ऑपोजिट मुन्नस हो गया और इसके साथ वाला मुजक्कर ही रहा, ठीक है। अफशीन समझ आ रही है? उस्ताद 2 मिनट ट्राई ना कर लो आ जाओ, अगर ट्राई आप कर, इजाजत दें। आ जाओ। आप ये 17 वाला कर लो, 17 तबीबा वाला। जी वस व सब सब मुजक्कर लगाएंगे, ठीक है। अशरता जी अशरता अशरता क्योंकि यहाँ पे तबीबा तन है ना। अच्छा जी ये अशरा नहीं है, ये अशरता है, ठीक है। अशरता जी और एक जबर के साथ है और तबीबा तन, तबीबतन जी ठीक है। आगे वाला हाजल कलम भी, ये वाला करना है ना। करा नल यौमा 18 कलिमतन जदीदतन। कितने अच्छे जुमले जी बने हुए हैं। ऐसे आपको भी जुमले बनाने आने चाहिए। उर्दू में बनाया करें और फिर अरबी में लिखा करें। अब इसका तर्जुमा इंशाल्लाह करके आप कॉपी में लिखें और उसका फिर इंग्लिश में बनाएं। देखें आपको ग्रामर कैसे आती है। हमने जी पढ़े, इंशाल्लाह हमने पढ़े 18 सफ़े नए नए लफ्ज, नए अल्फाज पढ़े। उर्दू में तर्जुमा करके लिखें और फिर अरबी में करें। अच्छा उसके बाद क्या है? कलिमतन मुअन्नस है तो हम मुज़क्कर लाएंगे समानिया समानी। अच्छा समानी अशरता समानी मुजक्कर होता है, ठीक है। समानी। जी आगे क्या है? समानी अशरता अशरत। बार बार बोलने में गलती अशरता
कलिमतन कलिमतन जदीदतन। जी कलिमतन, ठीक है, ये हो जी जाएगा। अब ये मुअन्नस है, उसके साथ वाला भी मुअन्नस है, ये वाला मुज़क्कर है, बस इतनी सी बात है। जी और ये गिनती पता है आपको कहाँ पे सिखाई गई है? आप अभी से सीख रहे हैं, लिसानुल कुरान के आखिरी चैप्टर्स हैं ये, वहां पे गिनती सिखाई गई है। मैं आपको यहीं पे सिखा रही हूँ, वहां जाएंगे तो सब आता होगा ना। हाजल कलमू बी 14 रुपया, ये जी कलम रुपया कितने का की है? 14 रुपए 14 का। रुपया की। चल जी तो ये रुपया मुअन्नस है तो हम इसको मुज़क्कर लाएंगे। अरबा हम्म, अशरता हम्म। रुबियतन। अच्छा, अब यहाँ पे बी भी आ रहा है ना, तो बी की वजह से ये क्या हो जाएगा? अच्छा अरबा, रुबियतिन हो जाएगा। वो चेंज नहीं होगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, वो तो मादूद है ना। ये जो अरबाई नंबर, हाँ हाँ, बी अरबा, अरबाई अरबाई अशरता। ये तो अशरता, अशरता हाँ मबनी है होने की वजह से हम्म। रुबियतन तमीज तो उसी तरह रहेगा। अच्छा, ये सारे मबनी है तो नहीं आएगा फिर, ये अगर मबनी है तो नहीं आएगा, देर नहीं आएगी, तभी मैं कहूँ क्यों अजीब लग रहा है जी ना। अगर जी सारे जी मबनी है तो नहीं लगाएंगे, बी अरबा ही लगाएंगे, जी जी ठीक है ना। बी अरबा जी अशरता, और आगे क्या आएगा? रुबियतन। रुबियतन। तो सही, जी मबनी तो मबनी रहते हैं ना। जी अच्छा, फी, अगर मबनी नहीं होंगे तो फिर आएगा फी हाजिहिल जी इमारती, अ, इमारती ये 16 है। छः का मुन्नस है मुजक्कर सित्ता अ, अशरता सित्ता अशरता हाँ, सिक्कतन। हम्म। तो आप ये वाला कर रही हो ना, तो ये कैसे बना? शिक्का जी तन तो इधर आएगा, यहाँ पर 6 के लिए तिस आ जाएगा, तिस आ नहीं आएगा, जी सित्ता आएगा, सित्ता, जी सित्ता सित्ता अशरता शिक्कतन। अशरता तो सित्ता कैसे सिक्कतन। लिखेंगे आपको पता है? ता बड़ी जी लिखनी है, ता बड़ी लिखनी है। हाँ, सित्ता सित्ता, सित्ता। जी हाँ, मेरे ख्याल में पूरी ता ही आएगी, इसी के ऊपर तशदीद जी आएगी, सित्ता इस तरह लिखा जाएगा। सित्ता आगे क्या होगा? अशरता, अशरता हाँ, शिक्कतन, सिक्कतन। शिक्कतन, في शिक्कतन। هذا الفصل إيه हम्म, في هذا الفصل हम्म, इसको इशरूना हम्म, क्योंकि ये तो मार्फा ही रहेगा। तालिबतन हम्म। ठीक है, इशरूना तालिबतन, ठीक तालिबतन है। ये इशरूना क्यों रहा? इशरूना क्यों रहा? क्योंकि ये हमारी खबर बन रही है और वो हमारा मुब्तदा बन रहा है, अदद मादूद मिलके हमारा मुब्तदा बन रहा है। वरना इशरीना भी हो जाता, अगर पीछे बी वगैरह जी आता ना तो वो हम्म, इशरीना भी हो जाता, ठीक है। कि इशरूना चेंज हो जी सकता है ना, इशरूना तो इशरीना जी में चेंज हो सकता है ना। ये ऊपर वाले मबनी थे सारे, ये वाला मबनी नहीं है। अगर बी आ जाता तो बी इशरीना हो जाता, लेकिन इन्होंने अभी क्या किया है, इसको पीछे मुब्तदा बनाया, तो ये मरफू ही रहेगा। इशरूना तालिबतन, ये मुब्तदा है आपका पूरा, अदद मादूद, और ये पूरी आपकी खबर है, ठीक है। ये मुरक्कबे जी जारी बन के खबर है। इसी तरह यहाँ पे भी ये पूरा मुरक्कबे जारी खबर है, और ये अदद मादूद आपका मुब्तदा मुअख्खर है, और इसको चेंज नहीं जी करना क्योंकि ये मबनी है। यहाँ पे भी जी सित्ता में भी चेंज नहीं होगा, सित्ता में तो खैर वैसे ही नहीं होगा ना, तो इनको मबनी लाना है। इसको आप कर सकते हैं, ये इशरूना आएगा, इशरीना भी हो सकता है। अच्छा, अभी ये जी वाला जो है ना, इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो इसमें 11 से 20 तक आपने जो गिनती है वो लिखनी है, और साथ किताब को जो है वो क्या बनाना है आपने? मादूद तमीज बनाना है। बनाना तो महदूद जो होता है वो तो मंसूब होता है ना। अगर हम जी कहते हैं 11 किताबें, तो कैसे बनेंगी 11 किताबें? मैम 11 किताबें इहदा नहीं एहदा क्यों? अहदा एहदा अहदा अहदा सॉरी अशरा अहदा अच्छा, अशरता किताबन। अशरा अशरा 11 और 12 में ये होता है कि अगर मोन्नस है तो पूरे ही मोन्नस होंगे, ठीक है। जी 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 मुजक्कर है तो पूरे मुजक्कर होंगे। अब इसका बनाएं 11 तालिबात,
हाँ, 11 तालिबात इहदा तालिबात नहीं अशरता करना, तालिबात नहीं करना, तालिबन तालिबतन कर। तालिबतन जी तो क्या होगा? 11 तालिबा अहदा या इहदा? इहदा इहदा, क्योंकि मुअन्नस है जी इहदा अशरता तालिबतन तालिबतन, ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तालिबतन। मुअन्नस आए तो सारे मुअन्नस आए, क्योंकि 11 का अदद है ना, जी 11 तालिबात, तो सारे ही मुअन्नस आएंगे। और जी अब आप बनाएं कि अब आप बनाएं 13 तालिबात। सलासता अशरता तालिबतन गलती कर दी ना आपने। जब 13 का नंबर होगा ना तो क्या होगा? ये पहला वाला मुज़क्कर मुअन्नस नहीं आएगा, ये मुज़क्कर आएगा, क्योंकि ये हाँ मुअन्नस है ना। बनाए, सलासा अभी अभी बनाए। 13 सलासा सलासा अशरता सलासा अशरता तालिबतन तालिबतन, ठीक है। तो ये अशरता आएगा, क्योंकि ये जी मुअन्नस है तो यहाँ मुअन्नस ही आएगा, लेकिन ये मुज़क्कर हो जाएगा। लेकिन 12 में देखें सारे मुअन्नस हैं। 11 जी और 12 में सारे ही सेम होंगे। अगर 12 फीमेल स्टूडेंट हैं तो क्या आएगा? मैंने एक क्वेश्चन करना था, तालिबातुन से तालिबातन हुआ है, ये किस वजह से? क्योंकि ये हमने तालिबतानी लिखा है सब जगह जनाब, ये देखें सब हाँ ऊपर जगह, तो लिखा है, नीचे हाँ ये नीचे सब नहीं है। हमने यहाँ पे जितने लिखे हैं ना, ये जबर ही लिखे हैं हाँ इधर। वो तो थे पहले से है तालिबतन, हाँ मगर वो नीचे जो अभी लिखा आपकी हाँ अकल को थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो लोग, कि आप क्या करते हो, Oh, क्या सीखा है आपने। I got it. Thank you. यू गॉट इट, गुड, शुक्र है, Thank you. समझ आई। तो वो तो जो मादूद बनेगा वो जबर के साथ ही बनेगा। किताबन में 2 जबर लगाएंगे तो अलिफ भी ऐड करेंगे। तालिबतन दकीका तन में तो ऐसे ही 2 जबर लगा देंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह। लेकिन जी यौमन में भी आपको 2 जबर लगा के अलिफ लगाना होगा, जी रजुलन में भी लगाना होगा, तालिबन में भी लगाना होगा, लेकिन सनतन उसमें। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, बताएं मुझे। 11 से 20 तक अल्हम्दुलिल्लाह की गिनती कैसे होगी? अल्हम्दुलिल्लाह 11 और 12 का जो अदद होगा वो तो सारे या तो मुज़क्कर होंगे या सारे ही मुअन्नस होंगे, ठीक है। जी 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 तो उसके बाद 13 से जो होंगे वो, अगर आपका ये वाला मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर हो जाएगा शुरू वाला, अगर ये मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है। जी हम्म अच्छा, इसका 626 तो बहुत अभी बाकी रह गया, कल करें बहुत बाकी अभी है, रहने देते हैं ताकि आप लोग ये हम्म। जी जज्ब कर लें थोड़ा, फिर मैं आपको ये नया हाँ वाला ये कॉन्सेप्ट अदद सिखाऊं। में थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लग रहा है, इसको दोबारा जब तक नहीं पढ़ूं तो याद नहीं रहेगा, आप इसको देर थोड़ा से सा आती हो ना, लेंगे तो फिर जब देर से आते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जी देखिए, जी जब किताब उनको बनाएंगे ना तो 11 किताबें जब बनाएंगे, है ना, जी तो जी सारे ही मुज़क्कर होंगे, क्योंकि ये मुज़क्कर है, ठीक है। जी 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 और अगर 12 किताबें बनाएंगे तो ये मुज़क्कर है तो सारे ही मुज़क्कर होंगे। 11 और 12 में तो सारे ही मुज़क्कर होंगे। अगर मुअन्नस है तो 11 और 12 में सारे ही मुअन्नस होंगे। ये बात समझ आ गई? जी 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 अब जब 13 पे जाएंगे तो 13 में क्या होता है, हमेशा ऑपोजिट हो जाता है, जी गिनती अगर ऑपोजिट होती मादूद है। हाँ, मुज़क्कर हुआ तो फिर वो अदद को मुअन्नस रखेंगे हम्म, हाँ अदद को मुअन्नस रखेंगे, और अगर मादूद मुअन्नस हुआ तो अदद को मुज़क्कर रखेंगे। अब समझ आ गया। अगर मैं बोलती हूँ 13 किताबें तो कैसे बनाएंगी 13 किताबें? तो सलासा अशरता किताबन अभी आपने गलती कर दी ना, मैं यही सॉरी सोच रही सॉरी थी आप सॉरी गलती सॉरी कर दी। पता है गलती क्या हुई है? सलासता अशरता किताबन, क्योंकि किताबन मुज़क्कर है तो हमें वो मुअन्नस लाना पड़ेगा। नहीं, तो अशरा भी होगा ये ना मैम? हाँ अशरा होगा, अशरता क्यों लगा रही हैं? ये अच्छा किताबन मुज़क्कर है ना, हाँ हाँ तो इसको क्यों चेंज कर रही है? सिर्फ इसको चेंज करना है, इसको अशरा में रखेंगी, इसको किताबन रखेंगी, ये दोनों जो है ना मुज़क्कर ही आएंगे, जी जी ये जी दोनों अब समझ मुज़क्कर ही गई। आएंगे, ठीक है। ये वाला चेंज होगा और इसको सलासा तू लाना है,
सलासता लाना है इसको, जी सलासता अशरा किताब मेरा समझ एक आई? मेरा एक जी और क्वेश्चन, जो क्या नहीं, मादूद होता है वो हमेशा नस्बी होता है, नस्बी हालत में जबर होता है, के चाहे मुअन्नस हो ओ, मुज़क्कर हो, 2 ज़बर के साथ नस्बी हालत। ठीक है, ये कंफर्म करना 2 है, थैंक नकिरा यू। होता है ना, तो 2 ज़बर के साथ होते हैं। अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह, अभी ये समझ गई। मुज़क्कर है तो इसके साथ वाला मुज़क्कर है, ये वाला ऑपोजिट हम्म, होगा। जी अगर हाँ, आप ये समझ गई। तेरा स्टूडेंट करती हैं तो कैसे होगा? तेरा स्टूडेंट, और अफशीन, स्टूडेंट फिर अफशीन आएगा तेरा स्टूडेंट कौन थी? वो आयशा थी। तेरा स्टूडेंट जी करें जी आयशा। सलासा अशरता सलासा तालिबतन तालिबतन सारे ना बोले, मैंने हेडफोन्स पहने हुए, प्लीज मेरे कान फट जाएंगे। अच्छा, अब तेरा स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट बनाए, एक बंदा। सलासा सलासा अशरता तालिबतन सलासा, अब ये क्या है, जब मुजक्कर हो गया, ये अशरता जी होगा, सब पे जबर ही आनी है, ठीक है, सिवाय इसके जी ऊपर सुकून आना है। जी अशरता अशरता तालिबतन, तालिबतन ये जी ख्याल रखना है आपने। जी जी 11-12 में ये ख्याल नहीं रखना। 11-12 में अगर मुजक्कर है तो सारे मुजक्कर, 11 और जी 12 के लिए, और अगर मुअन्नस है तो सारे मुअन्नस। लेकिन 13 में ऑपोजिट करना होगा। किसको ऑपोजिट करना है? इस वाले को ऑपोजिट करना है। इसको तो सेम ही लाना है। यहाँ पे ये मुजक्कर है तो मुजक्कर ही लाए, यहाँ पे ये मुअन्नस लाए तो मुअन्नस लाए। तो इसको जी करिएगा, जब तक करेंगे नहीं ना तो फिर चीजें भूल जाती हैं। समझ आ गया आप इंशाल्लाह लोगों को, मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी ना। अनम, आपको समझ आई? आपने माइक लिया था? वैसे तो छुट्टी का टाइम हो गया, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ सिर्फ। चलें, शायद बिजी है। ओके, क्लास में आए तो अटेंटिव रहा करें और पता लगे कि आप लोग मौजूद हैं, ठीक है? जी मैम। बाद जी लोग उस्ताद थोड़ा समझ नहीं आती तो फिर माइक में आने से भी घबराते हैं ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक ना फिर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा के यहीं से फिर आगे लेके जाऊंगी। तो आप लोग जी इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा, मैंने समझा दिया अच्छी तरह। पीछे से भी देख सकते हैं ना, पीछे कैसे बने हुए हैं, इनको भी तो आप ये तो मैंने एक्सरसाइज करवाई है, लेकिन ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है ना, इसमें आप देख सकते हैं। देखें, 11 और 12 के लिए ये मुअन्नस है तो सारे ही मुअन्नस है, ठीक है? अगर ये ताले बंद कर दें तो ये सारे क्या हो जाएंगे? मुजक्कर हो जाएंगे। ये ताले बंद कर दें तो ये सारे मुजक्कर हो जाएंगे, क्योंकि ये 11 और 12 का नंबर है। 13 में जाके देखें, ये इसके ऑपोजिट हो गया, ये इसके ऑपोजिट हो गया, ये इसके ऑपोजिट हो गया। साथ वाला ऐसे है, ठीक है? अगर यहाँ ताले बंद हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये उसके साथ वाला भी तो मुजक्कर हो जाएगा ना फिर। अशरा हो जाएगा फिर, अशरा, अशरा हो जाएगा, अशरा नहीं होगा, अशरा। उसमें यहाँ पे अशरा, सुकून नहीं आएगा, उसमें जबर आएगी। अच्छा, देखिए, अशरा। मैंने लिखे थे यहाँ पे अशरा, सही है? तो ये अशरा हो जाएगा। जब ये ताले बंद होगा तो ये अशरा हो जाएगा, 13 में होगा, ठीक है? और ये वाला 13 से। सलासा तू हो जाएगा। ये मुजक्कर होगा तो ये सलासा तो नहीं रहेगा ना, ये सलासा तू हो जाएगा। सही। ये तो अभी मुअन्नस है तो ये सलासा है ना। जब ये ताले बंद कर देंगे तो ये सलासा तू हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा जी, ये मैंने सलासा। की है ना, ये देखो ऑपोजिट। जी जब यहाँ मुजक्कर आता है तो ये मुअन्नस हो जाता है। सही जब तक खुद नहीं करेंगे ना, नहीं आएगा, मेरे बोलने से कुछ सही नहीं सही। होने वाला, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते बनी हुई है इंशाल्लाह। बुक में, उनको करें। बुक के ऊपर इंशाल्लाह ही जी। लिखें या अलग से लिखना चाहते हैं अलग लिख लें। बुक अलग। पे जब भी लिखें पेंसिल से लिखें, बुक पे कभी जी पेन से ना लिखें। मेरा तो ये जी। रब हो जाता है, मैं भी बंद करूंगी, ये ऑटोमेटिक सब रब हो जाएगा। फिर आज जब मैं आऊंगी तो नई किताब होगी आपके पास के ऊपर। तो ये जब इसको मैं बंद करती हूँ ना, ये मैं लीव करूंगी यहाँ से, ये बंद हो गया। अब ये आपका नजर आ रहा है मुझे। अब आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? अरबिक ग्रामर ये आपके अपने आपका नाम नजर आ रहे पेज है। होंगे ना, अभी ये जूम नजर नहीं, आ रहा है। नाम भी खाली अब आया है नाम नजर। ये थोड़ी देर आबिदा में। का आया, ये सबके नाम आ रहे हैं, फौजिया। ठीक है? सही, और अगर मैं जी। इसको भी बंद करूंगी, एंड मीटिंग करूंगी, तो फिर आपका बंद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है?
ओके, दुआ ठीक कर है लेते हैं। सुब्हानकल्लाहु जी व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। मुझे लगता है औरतों को छोड़ के मुझे मर्दों को पढ़ाना चाहिए। ओ मैं हस्बैंड पढ़ना चाह रहा है मेरे हस्बैंड, अगर वो भी आपकी तरह ही हुए ना मेरा काम हो जाएगा। नहीं उस्ताजा हस्बैंड कह रहे थे, मैंने कहा बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ माशाल्लाह से, आपके लगता है आपके सर मैं में ड्रिल कर देती है हाँ, चीजें, तो मेरे कहने अलावा लगे कोई मैं मर्दों भी को पढ़ पढ़ा भी सकता नहीं हूँ सकता, मर्दों को कोई काबू कर भी नहीं सकता। तो तो पढ़ा सकती है तो पढ़ा दिया एक दफा मैंने ऐड दिया था, इतने मर्द आगे पढ़ने के लिए कि मुझे संभालना मुश्किल हो गया। ओ इतने अच्छा, फिर मैंने पता क्या किया, मैंने उनको पढ़ाया नहीं, मैंने उनको रिकॉर्डिंग दे देती थी। मैं कहती ये रिकॉर्डिंग सुनो और ये टेस्ट है, इसको करो, और फिर हाँ की दे देती थी कि हाँ इसको चेक कर लो अभी। हाँ तो मैं उनको सिर्फ मैसेजेस के साथ पढ़ा रही थी, मैंने अच्छा जबानी यानी बोल के कभी भी नहीं पढ़ाया उनको, क्योंकि वो इतने ज्यादा हो गए थे, पूरा ग्रुप आ गया इतना बड़ा, इंडिया से सारे, मुझे पाकिस्तानी नहीं नहीं पता था, पढ़ना समझा चाहते खाली ये समझा सब। लेडीज का ऑफर भी तो पढ़ाती उस्ताजा ऑफर भी तो किसी लेडी का मिला ना, इसलिए और ज्यादा उन लोग आ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी, नो सब अच्छे थे, सब अच्छे थे। वो सिस्टर 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 ही करते, क्योंकि मेरा नाम भी सिस्टर शमीम ही है ना, तो वो सिस्टर ही रहे, हाँ कभी नाम से भी नहीं आदमी बुलाया। बहुत इज्जत आदमी करते थे, बहुत इज्जत करते थे, वक्त पे आपकी तरह नहीं थे, वक्त पे सुनते थे, वक्त पे काम करते थे सारा, बहुत ही ज्यादा अच्छे ओबीडियंट। अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा, जी भाई माजरत चाहती हूँ जी। हम्म उस्ताजा मुझे आपने जो पिछला जो ये दिया था टेस्ट भेजा था ना, आपने उसकी कीज नहीं भेजी, भेज दूंगी जरा आपको, जिसने प्लीज भेज मांगी है दीजिए। उसको मैंने दी है, जिसने नहीं मांगी उसको नहीं दी। मैं कीज ग्रुप भेज में, दिए, अच्छा हाँ, जिसने टेस्ट ओके मांगा था ओके। मैंने उसको टेस्ट दिया, जिसने की मांगी हाँ उसको टेस्ट नहीं। टेस्ट मैंने भी मांगा था तो हाँ, मुझे बस मिल गया। वही की भी आपको मांगनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग हैं तो और कब सब टेस्ट, मुझे सब तो तो नहीं नहीं, बहुत करते पहले ना, आया था टेस्ट, अभी बहुत रिसेंटली पहले। भेजा था आपने टेस्ट, मुझे मैं नहीं आपको मिला की कोई दे टेस्ट, दूंगी आज, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे नहीं। अल्लाह हाफिज।